कि फिलहाल but also fair to their students. The authoritative style looks to give students their own voice. Classroom discussions are encouraged. This teacher cares a great deal about their students. The teacher wants to see their students succeed, and you often see a lot of positive feedback from the teacher. These teachers consider the consequences of their actions. Authoritative teachers carefully weigh the circumstances of a student's inappropriate behavior. Next up, the permissive style. Very little control and very little student involvement. Unfortunately, this is a teacher that doesn't really care about their teaching career. Teaching is just a way to pay the bills. The permissive teacher often doesn't take the time to prepare lesson plans. Permissive style classrooms are out of control. Students are out of their seats, doing whatever they please. A teacher doesn't take the time to go over classroom rules or procedures. Permissive teachers often show movies during class time. They do this simply because they do not feel like teaching. The permissive teacher doesn't know much about his students. He doesn't care about the kids. Teacher-student relationships are of little importance to him. Permissive teachers don't notice suffering students. And lastly, indulgent. Very little control, but highly involved in the students. The indulgent teacher takes their career as a teacher very seriously. They work very hard to plan fun and exciting lessons. You can count on this teacher to come to class prepared. The indulgent style of classroom management believes in a student-empowered learning model. The indulgent teacher lets the students run the classroom without intervening when they probably should. The indulgent teacher looks to build strong relationships with their students. These teachers have close relationships with their students. Overall, they deeply care about the kids. Indulgent teachers have difficulty saying no. These teachers want students to behave in the classroom, but are not strict enough to get them to behave. So here's the question posed. What is your classroom management style? ओके तो ये वीडियो आप सबने देख ली। आपके पास जो है चार, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं कि चार आपके पास जो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स आपके पास नजर आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 अथॉरिटेरियन है, नंबर 2 हमारे पास जो है परमिसिव है, नंबर 3 हमारे पास अथॉरिटेटिव है और नंबर 4 हमारे पास इंडल्जेंट है। ये चार मेथड्स हैं, मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, जो कि हम इससे पहले अपने क्लासरूम्स में जो है मैनेज करते होंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ टीचर्स ये कहेंगे कि हम कुछ जो है हिस्सा जो है वो इस मेथड का अप्रोच का जो है लेते हैं और कुछ हिस्सा जो है हम इस स्टाइल से जो है हम जो है अप्रोच से लेते हैं। लेकिन आप जिसमें ज्यादा जो है आपको लगता है कि ये आपका ज्यादा जो है ये करीब, ये स्टाइल वो करीब है आपके स्टाइल से, तो मैं एक पोल लॉन्च करने जा रहा हूँ। पोल आपकी स्क्रीन पर जो है नजर आ जाएगा आपको, और आपको जो है उस पोल को जो है सिलेक्ट करना होगा। कोई एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा जो है प्रीफर्ड जो है स्टाइल ऑफ मैनेजिंग स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने पोल लॉन्च कर दिया। आप सबकी स्क्रीन पर इस वक्त पोल मेरे ख्याल से जो है नजर आना शुरू हो गया होगा। मैं लॉन्च कर रहा हूँ पोल, तो पोल लॉन्च हो चुका है। आप सबके पास जो है इस वक्त पोल नजर आ रहा है। What is the preferred style of managing students behavior? Permissive, authoritarian, authoritative, indulgent, कि कौन कौन से मेथड्स जो आप सब जो है क्लासरूम में जो है अपनाते हैं। इससे पहले, कोविड की सिचुएशन से पहले की बात हो रही है डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल तो एक बहुत बड़ा अजाब बन चुका है इन कोविड। अच्छा, ये जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं मैं इनसे पूछूंगा भी कि वो जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो ऑप्शंस क्यों सिलेक्ट किए उन्होंने। जैसे ही हमारे पास जो है ये पोल कंप्लीट होता है, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो पोल के आंसर कर देते हैं मेजॉरिटी। मैं जो है फौरन क्या करूंगा, इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लोग अभी वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 55 जो है अटेंडेंस में जो है लोग मौजूद हैं, और जो है 37 इस वक्त वोट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग रह गए हैं काइंडली वो भी वोट कर दें, ताकि जो है फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, वोट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। 43 लोग हमें इस वक्त वोट कर चुके हैं, 44 हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो मेजॉरिटी मेरे पास इस वक्त मेरी स्क्रीन पर शो हो रही है, क्योंकि साथ साथ मुझे साइमल्टेनियसली रिजल्ट नजर आ रहा है। आप लोगों को मैं जैसे ही रिजल्ट मैं पोल एंड करता हूँ मैं आप सबसे शेयर करूंगा रिजल्ट। तो मेरे पास जो है
उम्मे सलमा कह रही हैं मुर्तजा आई वुड लाइक टू रीवोट का ऑप्शन ऑब्वियसली मेरे पास तो नहीं है इस वक्त स्क्रीन पर। आप अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रही हैं तो वो आप जो है बता दें हमें कि कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। आप लिख दीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे चैट पर। आई प्रेस इंडल्ज बाय मिस्टेक। ठीक है कोई बात नहीं, आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करें आप बता दें कि आप अथॉरिटेटिव जावेद। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी लोग जो है इसको जो है अभी जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर चुके हैं पोल को। ठीक है, जो हमारे पास पोल हमारे पास था इस वक्त मैं इसको एंड कर देता हूँ और आप सबको जो है मैं रिजल्ट दिखाना शुरू करता हूँ कि जो है हमारी स्क्रीन पर आप सबकी स्क्रीन पर अब रिजल्ट आना शुरू हो चुका होगा। ठीक है, जो जो लोगों ने इंडल्जेंट, क्योंकि जो है काफी सारे लोगों ने इंडल्जेंट मेथड जो है सिलेक्ट किया है और बाद में पता नहीं उनको क्यों क्या रियलाइज हुआ है कि जो है वो इंडल्जेंट, उनको लग रहा है कि जो है इंडल्जेंट जो है वो उनके लिए नहीं सही मेथड है, वो किसी और मेथड को जो है या मैनेजमेंट स्टाइल को जो है वो अप्रोच रखते हैं उनकी। तो ठीक है, आप जो भी अप्रोच रखते हैं आप वो बताना शुरू करें अपने चैट पर। लेकिन जो हमारे पास जो इस वक्त पोल का रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और वो नजर आ रहा है कि जो मेजॉरिटी टीचर्स हैं वो जो है अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है रखते हैं, जिसके अंदर वो क्लासरूम की जो है डिस्कशंस को भी प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी लेते हैं, लेकिन वो फर्म भी रहते हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ एक सर्टेन जो है रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है काम करते हैं। तो बेहतरीन है अथॉरिटेटिव स्टाइल, तो नंबर 1 जो है वो बेहतरीन स्टाइल है। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि वो परमिसिव मेथड यूज करते रहे इससे पहले, कुछ लोग अथॉरिटेरियन मेथड यूज करते रहे और जो है 38% ने हमें कहा कि वो इंडल्जेंट मेथड जो है वो यूज करते रहे हैं। तो ये मेरे पास स्क्रीन पर है। कौन सीवी खान कह रही है कि कैन सी कांट सी द रिजल्ट। आप लोगों की स्क्रीन पे रिजल्ट नहीं आ रहे? देखें जरा, क्या रिजल्ट नहीं नजर आ रहे हैं? We cannot see that. Now it's अब देखिए मैंने जो है वो मैं ऑप्शन जो सिलेक्ट करना भूल गया था शेयर रिजल्ट का, और मैंने जो डिस्कस। Yes, it's visible now. Thank you. थैंक यू। आप लोगों ने बताया, थैंक यू, क्योंकि वरना मुझे लगा कि मैंने रिजल्ट शेयर कर दिए हैं। तो चलें ठीक है, अब जब हम दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास जो स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि 13% का कहना है कि वो परमिसिव मेथड यूज करते रहे इससे पहले, और जो 4% कह रही थी कि वो अथॉरिटेरियन मेथड यूज करते हैं। जो ये 4% है जिनमें 2 लोगों ने ये रिप्लाई किया अथॉरिटेरियन मेथड, काइंडली वो जरा बताएं कि क्या वो उनके लिए काम करता है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ अथॉरिटेरियन मेथड में जो है स्टूडेंट्स को क्योंकि इतना जो है मार्जिन नहीं मिलता बात करने का, रिस्पॉन्ड करने का, तो हमें नहीं पता होता कि वो स्टूडेंट जो है समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो जिन भी लोगों ने जो है परमिसिव मेथड डिस्कस सिलेक्ट किया, काइंडली बताएं कि वो क्या वो उनके लिए वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, या वो समझते हैं कि इसको चेंज कर लेना चाहिए अब उन्हें। इसके अलावा जो है 4% ने हमें कहा अथॉरिटेरियन मेथड यूज करते हैं, जिसका जाहिर सी बात है लो जो है हमारे पास जो है कंट्रोल, लो इन्वॉल्वमेंट है बट हाई कंट्रोल हमारे पास रहता है। अथॉरिटेटिव मेथड में हमारे पास जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा फिजिबल है, ये सबसे ज्यादा आइडियल है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तनवीर यूसुफ हमें कह रहे हैं अथॉरिटेटिव मेथड कैन बी आइडियल बट नॉट प्रैक्टिकल इन अ कल्चर वेयर एजुकेशन फुली कमर्शियलाइज। मैं आपकी बात नहीं समझ सका, आप किस वे में कहना चाह रहे हैं कि जो कमर्शियलाइज एजुकेशन हो चुकी है और अथॉरिटेटिव जो प्रैक्टिकल नहीं है, किस तरीके से आप कह रहे हैं? मैं तो कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल है, बहुत सारे टीचर्स ने सिलेक्ट किया, इसका मतलब है कि वो इस मेथड को जो है अप्रोच को अपना रहे हैं, जो है उसको जो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, मायरा खान का एक मैसेज आया, ये स्लाइटली आउट ऑफ द टॉपिक है मगर मैं इसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मुझसे जो है ये जब से ये फ्री वेबिनार मैंने अनाउंस किया था उसके बाद से मुझे कई जो है इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि जय सर गोइंग गुड सेशन, इट्स इंफॉर्मेटिव बट आई वांटेड टू नो वन थिंग, आर वी गोइंग टू गेट एनी ई सर्टिफिकेट फॉर दिस सेशन? इफ यस इट वुड बी ग्रेट फॉर आवर सीवी। तो देखिए हमारा जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रोग्राम होता है वो ये होता है कि हम ऑनलाइन वर्कशॉप जब कंडक्ट करते हैं तो हम उसके जो है सर्टिफिकेट्स कुरियर के जरिए जो है स्टूडेंट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। स्टूडेंट्स बोलो पार्टिसिपेंट्स को जो है वो हम जो है कुरियर सर्विस के जरिए जो है पहुंचा देते हैं उनके घरों तक। बट ये क्योंकि फ्री वेबिनार था, ओपन फॉर ऑल था, तो हमने इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं रखा था। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई पार्टिसिपेंट जो है अपनी सीवी वर्क के लिए या किसी और पर्पस के लिए सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन करना चाहता है तो वो जो है अभी इस पूरे सेशन के बाद जो है हमें व्हाट्सएप नंबर पर, आप सबके पास व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद होगा, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो अपना सर्टिफिकेट लिखकर जो है भेज दे। ऑन द पेमेंट ऑफ ₹350 मैं जो है ये आप लोगों को जो है विद इन 1 वीक जो है आपके सर्टिफिकेट जो है कुरियर सर्विस के जरिए जो है पहुंचा दूंगा। एज फार एज ई सर्टिफिकेट इज कंसर्न, मैं ई सर्टिफिकेट्स जो है इस वक्त हम जो है नहीं जो है शेयर करते हैं या नहीं हम जो है इशू करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो ई सर्टिफिकेट्स जो है वो हम नहीं
जय इशू करेंगे। हम जय जो ऑन पेपर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हम जय इशू करेंगे। तो ये जय साइड ऑफ द टॉपिक डिस्कशन थी। बहरहाल जय अब हमारे पास जय कुछ सवाल और आना शुरू हो चुके हैं, और जैसा एक सवाल हमारे पास आ गया है, सारा शाहिद कह रही है कि इंडल्जेंट मेथड को वो सही से समझ नहीं सकी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो इंचार्ज हैं उनको समझ नहीं आ रही। तो अगर आप अपनी स्क्रीन की इस वक्त देखें तो उसने सबसे पहले बोला था कि टीचर कम्स टू क्लास प्रिपेयर्ड। टीचर जो है वो क्लास में प्रिपेयर्ड आता है, मगर वो जो है उसकी इनकॉम्पिटेंसी ये होती है कि वो क्लास को मैनेज नहीं कर पाता। जब वो क्लास को मैनेज नहीं कर पाता, और क्योंकि वो इमोशनली इतना ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ अटैच होता है कि वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा होता, वो बहुत सारी चीजों में लॉजिकली एप्लीकेशन के बजाय जो है सिचुएशंस में इमोशनली जो है अप्लाई कर रहा होता है सिचुएशन को, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीजों में जो है स्टूडेंट्स के जरिए जो है स्टूडेंट्स की इंचार्जमेंट में आ जाता है, और खुद इंचार्ज बनने के बजाय क्लासरूम का स्टूडेंट्स को जो है इंचार्ज बना देता है। कैसे, मैं इसकी कोई जो है लाइटर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर सपोज अगर मैं किसी स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और मैंने कोई टेस्ट अनाउंस कर दिया है। अब इस टेस्ट को अनाउंस करने के बाद जो है होना तो ये चाहिए कि अगर मेरा एक सर्टेन रूल होना चाहिए कि इस दिन हमारा टेस्ट है और मैं टेस्ट की डेट्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करूंगा। लेट सपोज मैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करूंगा, लेकिन जो है कोई स्टूडेंट आ जाता है और जो है वो मुझे इमोशनली कुछ बातें करता है, क्योंकि मैं डीपली केयर करता हूँ अपने स्टूडेंट की। तो मैं इस तरीके से स्टूडेंट अगर चाहे तो फिर वो अपनी मर्जी से क्या कराएगा, डेट की चीजों को आगे पीछे कराएगा, जो कि आपके लिए एज अ टीचर जो है क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर आगे भी जो है जवाब देना होता है, मैनेजमेंट को जवाब देना होता है, पेरेंट्स को जवाब देना होता है कि क्यों आपके टेस्ट जो है आगे पीछे हो रहे हैं, या क्यों जो है आपके रिजल्ट जो है वो बेहतर आउटकम के साथ जो है ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं। तो ये इंडल्जेंट मेथड के अंदर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी चीजों में अथॉरिटी ले लेते हैं टीचर से, और होता ये कि फिर जो है स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं। टीचर जो है वो क्योंकि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो बहुत सारी चीजों में जो है अपनी मैनेजमेंट को जो है मैनेजमेंट ऑर्डर को क्या कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। हमने जो है इन मेथड्स को जो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स को हमने जो है डिस्कस कर लिया है। 4 मेथड्स हमारे पास हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स के। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि सबसे बेहतर जो हाई इन्वॉल्वमेंट है और हाई कंट्रोल है, जो सबसे बेहतर और आइडियल सिचुएशन है, वो अथॉरिटेटिव की है। तनवीर यूसुफ साहब कह रहे थे कि जो है अथॉरिटेटिव मेथड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर वो चाहें तो जो है ऑडियो पर आकर जो है हमें बताएं कि क्यों उनको लगता है कि वो कमर्शलाइज हो गया है और वो जो है बेहतर नहीं है। जी, तनवीर साहब अगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका जी सर। जी हम सुन रहे हैं। आप जी, इसमें if we just consider the like top institutions जो कि बड़ी मतलब elite क्लास में है, तो वहाँ पे तो शायद ये चीज़ें चल जाती हैं, बट नॉर्मली जो है वो उसमें आपके मैनेजमेंट की तरफ से भी इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन टीचर्स को नहीं होती कि वो अपने यानी कि कंफर्टेबली इसे रन कर सकें जो भी उनका सिलेबस है। तो एक तो ये चीज़ है, फिर इसके अलावा डाइवर्स बैकग्राउंड है, मतलब एडमिशन के वक्त ये बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है कि बच्चे की क्या स्किल्स हैं क्या नहीं। मैं एक जनरल लेवल पर बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जो वो अपनी शॉर्ट लिस्ट रखने के लिए एडमिशन को या एक्सपेंशन जो अवॉइड करते हैं स्कूल्स, BVS वगैरह हो गया, तो वो एक अलग फैक्टर है। बट इन जनरल ये देखा जाता है कि ठीक है आने तो, मतलब बच्चा जैसा भी आ रहा है। तो जब डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल अप्रोच, डिफरेंट बैकग्राउंड के जिनकी मतलब ग्रास रूट लेवल से एक तरह की नहीं, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा जो है ना अथॉरिटेटिव जो मेथड है ये आइडियल है। और सम टाइम एक ही स्कूल में आप देख रहे होंगे कि अगर 8 क्लासें चल रही हैं एक वक्त में, तो उसमें शायद 2 क्लासों में ये इम्प्लीमेंटेड भी होगा, बट इन जनरल ये 100% प्रैक्टिकल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इन दी एंड आपको पता है कि आपने अरे को प्रमोट भी करना ही है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ फैक्टर हैं, हिडन फैक्टर्स, जिसकी वजह से मैंने ये बात कही। लेकिन आइडियल ऑफ कोर्स यही है, और एक अच्छा टीचर जो मतलब अपनी प्रोफेशन से सिंसियर हो, तो वो जी अपनी कैपेसिटी, अपने प्रोफेशन और अपनी लिमिटेशन से सिंसियर हो, और वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके मैनेजमेंट का भी, तो वो शायद इसे रन कर ले। बट इन जनरल एक टीचर है, उसको ऑलरेडी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर हैं, फिर मैनेजमेंट प्रेशर्स है, तो वो फिर इस चीज को वो इतना इमोशनली साउंड नहीं होता कि वो इसको क्लासरूम में कंफर्टेबली रन कर ले। ठीक है, तो दिस वाज द ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब मैं भी कुछ कहूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तनवीर साहब ने एक बात की कि शाजिया साहिबा बात कर रही हैं? जी जी शाजिया यूसुफ, ओ लेवल्स की टीचर हूँ बायो और केमिस्ट्री की। बेसिकली देखें बहुत सारे लोग इंडल्जेंट को
स्टूडेंट सेंट्रल क्लास के साथ बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखिए वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कैन नॉट मैनेज ऑर्डर। जी जी जब एक टीचर ऑर्डर ही मैनेज नहीं करेगा तो वो स्टूडेंट सेंटर क्लास कैसे होगी? हमारा बेसिक कंसर्न है लर्निंग। बिल्कुल So बिल्कुल if a class is not learning and we बिल्कुल, आप cannot सही कह manage the order, if they are running here and there and you are teaching, you are deeply caring, you are coming prepared, but your class is not managed, so I don't think there will be any teaching taking place. So student central class जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज है. बिल्कुल So out of all these, as some people are asking you to explain all these four, तो इनका I think सारी pictures बहुत self explanatory हैं. बिल्कुल बिल्कुल और Actually, as Mr. Tanveer said, authoritative is the best approach, no doubt. But उसको प्लीज इंडल्जेंट को स्टूडेंट सेंट्रल क्लास से कंफ्यूज ना करें. थैंक Thank यू you. सो मच, आपने बहुत जबरदस्त रेस किया शाजिया। बहुत सारे लोग सही आप कह रही हैं कि जब मुझसे कह रहे थे कि चारों के चारों जो एक्सप्लेन कर दें, असल में मेरा मकसद ये था कि एक्सप्लेनेशन जो है मैं वीडियो के जरिए जो है शो करूं, क्योंकि ये ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ टीचिंग होता है कि आप जो है एक सर्टेन अगर मैं जो है सारे एक्सप्लेन करता तो ये हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होता कि मैं जो है आपको जो है चारों के चारों मेथड एक्सप्लेन करता और फिर हम इस पर डिस्कशन करते। इससे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए मैंने जो है ऑप्ट किया कि मैं एक अच्छी बेहतर यूट्यूब से वीडियो जो है वो आप सबको शो कर सकूं, उसमें सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन हुई नहीं हो और उसके बाद हम डिस्कशन के जरिए इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बहुत जबरदस्त पॉइंट जो है शाजिया ने जो है रेज किया और उन्होंने कहा कि इंडल्जेंट को आप प्लीज कंफ्यूज ना करें स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम से। जब अथॉरिटेटिव मेथड की बात हो रही थी तो जो अथॉरिटेटिव टीचर है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपने क्लासरूम को स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं बनाएगा या बाकी जो दूसरे मेथड्स हैं उनके अंदर भी स्टूडेंट्स टीचर्स है अपने क्लास को जो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं बनाएगा। फॉर सर्टेन टीचिंग, फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स और फॉर सर्टेन टॉपिक हमें अपने क्लासरूम को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना होता है, क्योंकि लर्निंग को जो लर्निंग एक वे में नहीं हो सकती कि सिर्फ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो या सिर्फ जो है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम हो। तो ब्लेंडेड मेथड ऑफ टीचिंग हमें जो है लर्निंग जो है ऑब्टेन करनी होती है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड और इंडल्जेंट को आप प्लीज मिक्स ना करें। तो इंडल्जेंट में ये कि जो है वो क्लासरूम में प्रिपेयर होके टीचर जो है आ रहा है, बट बिकॉज क्योंकि वो इमोशनली इतना ज्यादा केयरिंग है अपने स्टूडेंट्स के जो है लेकर और वो लॉजिकली जो है क्लास को जो है क्लास के ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्लास ऑर्डर नहीं मेंटेन हो पा रहा, क्लास मैनेज नहीं हो पा रही। और अगर क्लास मैनेज नहीं हो पा रही या वो क्लास को लीड नहीं कर पा रहा तो अनफॉर्चुनेटली जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो डेफिनेटली जो है हमारे जो है अचीव नहीं होंगे। तो ये हमारे पास था। इससे पहले तनवीर यूसुफ साहब ने अथॉरिटेटिव मेथड को कहा कि वो आइडियल है मगर वो जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो उन्होंने जो कंसर्न रेज किए वो भी बिल्कुल ठीक कंसर्न है, क्योंकि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो भी टीचर जॉब करते हैं उनको मालूम है कि टीचर जो है वो सलीमा शहजाद जो है वो हैंड रेज कर रहे हैं। अगर आप जो ऑडियो पर आना चाह रहे हैं तो ऑडियो पर आ जाएं और अगर आप चैट के जरिए बात करना चाह रहे हैं तो आप चैट के जरिए बात कर लें। ठीक है, अब हमारे पास जो है कुछ लोग आना शुरू हो चुका है कि प्लीज जो आप थोड़ा सा मूव ऑन कर दें, आगे के टॉपिक्स पर जो है बात करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। ये हमें कह रही हैं कि हयात आशिफ हमसे पूछ रही है कि सर डू यू थिंक दैट दीस स्टाइल्स मैटर इन अ वर्चुअल क्लासरूम ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस? मुझे ऐसा लगता है कि जय बिल्कुल आप कह रही हैं कि जय दीस स्टाइल्स मैटर, बिल्कुल ये स्टाइल्स मैटर करते हैं हमारे वर्चुअल क्लासरूम में भी। और अभी हम सिर्फ इसको जो ये जो हमारा जो है आइस ब्रेकर था कि हम चाह रहे थे कि आप सबसे डिस्कशन कर सकें ताकि जो है हम जो है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल पर डिस्कशन हो सके कि कौन सा स्टाइल हम क्लासरूम में बेहतर था और कौन सा जो है वर्चुअल क्लासरूम में हम इफेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा मेजर टॉपिक है हम उसके ऊपर जो मूव ऑन करते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव ऑनलाइन क्लासरूम मैनेजमेंट। तो हमें वो स्ट्रेटजीज जो हमें जो है अपनानी होंगी इफेक्टिव ऑनलाइन क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। तो जो सबसे पहले हमारे पास एक टास्क है, इस टास्क को जो है मैं चाह रहा हूँ कि जो हम थोड़ा सा होल्ड कर लें, पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद हम इस टास्क पर आएंगे। तो इस टास्क के ऊपर जाए, अगर मैं भूल जाऊँ थोड़ी देर में तो प्लीज आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा कि हमने जो है एक टास्क पीछे से जो है बीच में लीव किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है फोकस ऑन एंगेजमेंट। जब भी हम टीच कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो स्टूडेंट्स के पास जो है एंडलेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लेक्चर आप प्रिपेयर करके या वीडियो आप प्रिपेयर कर देंगे या जो ऑनलाइन सेशन आप कंडक्ट करेंगे उससे कई ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन या उससे कई ज्यादा वास्ट फॉर्म में क्वांटिटी के अंदर जो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल होगी। तो हमें ये चाहिए कि बजाय इसके कि हम जो 45-50 मिनट्स के लेक्चर्स को जो है काफी ज्यादा लेंथी करें, हमें ये चाहिए कि हम जो है कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे मटेरियल जो कि हमारे स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में रहते हुए उनके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन जो है फिजिबल है या जितनी इन्फॉर्मेशन इनफ है उनके लेवल के लिए,
हम उनसे बिफोर क्लास शेयर कर दें या क्लास की स्टार्टिंग में हम उनसे शेयर कर दें और वो जो है उसको रीड कर लें, वीडियोस को वॉच कर लें इन देयर फ्री टाइम। और उसके बाद जो है हम क्या करें कि 10 to 20 मिनट्स के सेशन को रखें और उसमें वो सारी चीजें जो हमने अपनी वीडियो के अंदर या अपने जो है मटेरियल के अंदर स्टूडेंट से पहले शेयर करी हुई थी, उनका जो है एक समरी जो है हम स्टूडेंट से जो है शेयर कर सके। इस पूरे मेथड के जरिए हम ऑनलाइन टीचिंग की जो मैनेजमेंट है, जिसमें जो है क्या होता है, जब हम 45-50 मिनट्स का जो सेशन रखते हैं, तो अभी भी क्या होगा कि अभी जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, 20 मिनट 30 मिनट्स अभी और बढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग खुद ब खुद जो है मुझे पता है कि यहाँ से लीव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि और स्टिल कि हम सारे के सारे जो टीचर्स हैं उसके बावजूद ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जो लीव करना शुरू कर देंगे। फिर बहुत सारे लोग पूछना शुरू करेंगे सर काफी लेंथी सेशन हो रहा है, आप इसको प्लीज शॉर्ट कर दें, कुछ टॉपिक्स को जो है चॉप आउट कर दें। तो ये हमारे साथ अभी भी होगा। तो ये जो है हमें बजाय इसकी कि हम इतना लेंथी सेशन जो अपने स्टूडेंट्स के साथ रखें, हमें चाहिए कि हम अपने सेशंस को जो है मजीद शॉर्ट कर दें और इस टेक्निक को जो है अपना लें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है क्या है, डाइवर्सिफाई एंड पेस कोर्स एक्टिविटीज एंड अवॉइड लॉन्ग लेक्चर्स। तो अवॉइड लॉन्ग लेक्चर्स पर तो बात हमारी वैसे भी हो चुकी है। कीपिंग योर कोर्सेज शॉर्ट एंड डाइजेस्टेबल मेक्स द होल लर्निंग प्रोसेस मोर एंगेजेबल एंड लर्नर फ्रेंडली। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को जो है पूरा लर्निंग प्रोसेस को, हमारे लिए असल में कंसर्न यही नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट को हम कितना पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए कंसर्न ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को कितना लर्न कर पा रहा है, स्टूडेंट ऑनलाइन टीचिंग से हमारी कितना बेहतर सीख पा रहा है। और हमारे लिए ये जरूरी होना चाहिए कि जो है कितना ज्यादा एंगेजेबल और लर्नर फ्रेंडली है हमारा कंटेंट। तो क्योंकि हमारा कंटेंट जो है लर्नर फ्रेंडली होगा, तो ही स्टूडेंट जो है वो बेहतर तौर पर लर्न कर सकेगा। तो ये जो हमारे लिए जो पहली टिप हो गई, हमारी पहली स्ट्रेटेजी हो गई कि आप जो भी लेसन प्रिपेयर करें, काइंडली जो आपने पिछले साल के लेसन प्लान्स बना रखे थे और आप उसी को जो है ऑनलाइन क्लासेस में ट्रांजिशन करें ना करें, और आप जो है अपने लेसन को जो है शॉर्ट करें। अगर आप वीडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं या वीडियो लेसन आप अपलोड कर देते हैं, तो उसको भी शॉर्ट करें, क्योंकि उससे बेहतर क्वालिटी में नेट पर अवेलेबल है। तो काइंडली आप उसको यूटिलाइज कर लें और जो उन सेशंस के बाद जो आप ऑनलाइन एक सेशन रख लें जिसमें आप वन डिस्कशन भी कर लें स्टूडेंट से, पार्टिसिपेशन डिबेट रख लें या कोई और एक्टिविटी आप प्लान कर लें, क्विज़ेस रख लें, जिसके जरिए आप जो है स्टूडेंट्स के साथ जो है कम्युनिकेट भी कर सकें और उनका लर्निंग जो प्रोसेस है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। हमारे पास कुछ और सवाल आ रहे हैं। कह रही हैं ताहिर साहब कह रहे हैं कि वीडियो एंड स्लाइड्स ऑफ दिस वेबिनार अवेलेबल लेटर टू पार्टिसिपेंट्स। ये लाइव जा रहा है हमारे इवेंट के पेज पर, जिस इवेंट पेज से आप लोगों को इस इवेंट के बारे में पता चला, तो ये लाइव जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर ये लाइव वीडियो रहेगी। इसके अलावा ये थोड़ा सा एडिट होने के बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आपके पास स्लाइड्स और ये पूरी की पूरी वीडियो अवेलेबल रहेगी, तो इसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर कोई चाहे तो जो है बाद में जो है कुछ अगर पर्टिकुलर जो है आपको पार्ट अगर चाहिए हो तो आप जो है मुझसे मांग भी सकते हैं, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो स्लाइड्स जो हम बाद में शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये कि हम अपनी एंगेजमेंट, अच्छा क्योंकि जो है ये जो मेरा पूरा वेबिनार है ये क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेट है, तो मैं सिर्फ उन टेक्निक्स की बात करूंगा जो कि क्लासरूम मैनेज करने में, क्लासरूम के मैनेजमेंट को इफेक्टिवली जो है हमारे पास जो है इफेक्टिवली जो है वो जो है काम करे। मैं सिर्फ उन्हीं मेथड्स और उन्हीं स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि वी नीड टू लर्न वर्चुअल क्लासरूम मेथोडोलॉजी। इससे पहले हम कई जो है सेशन जो है कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो हमने सिखाया कि किस तरीके से आप जो वर्चुअल क्लासरूम को डिफरेंट टूल्स की मदद से जो है कंडक्ट कर सकते हैं, और आइंदा भी हम जैसे कंडक्ट करेंगे, तो आप लोग सारे के सारे उसमें भी जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो जो है बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि एस्टैब्लिश नॉर्म्स का मतलब ये कि इससे पहले कि हम अपने क्लासरूम्स अपने वर्चुअल क्लासरूम्स के लेवल को बहुत आगे ले जाएं और कई महीने गुजर जाएं हमारे वर्चुअल क्लासरूम को, क्योंकि अभी नहीं पता कि कब तक हम जो अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप पर वापस पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल तो जो रियलिटी है वो यही है कि हमारे पास जो है ऑनलाइन क्लासेस ही एक मीडियम है जिसके जरिए हम अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है हमें चाहिए कि टीचर जो है वो अपने रूल्स, एक्सपेक्टेशंस सारे के सारे स्टैब्लिश कर दे स्टूडेंट्स के साथ। वो अपने 1-on-1 सेशन में या रिटन फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को पहले ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दे कि क्या उसकी क्लासरूम्स के रूल्स होंगे। अगर आप लोगों को याद हो कि जब अभी हमने स्टार्ट किया था सेशन, तो उस सेशन से पहले आप लोगों को जब इन्विटेशन मिली, तो उस इन्विटेशन में आप लोगों के पास जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मैंने पहले ही बता दी थी कि किस तरीके का जो है रूल्स होंगे। हमने आपको बता दिया था कि आप 10 मिनट्स पहले आ जाएं, फिर हमने ये बता दिया था कि जो है आप सब अपने माइक्स और वीडियोस को बंद रखेंगे। आपको ये भी बता दिया गया था कि अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो हैंड रेज करेंगे, वीडियोस पहले से रिकॉर्ड हो रही होंगी, आपको सारी चीजें पहले से बता दी गई थी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपका सेशन हो रहा है उससे पहले आप एस्टैब्लिश कर दें कि आपके रूल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है उस सेशन से।
नंबर 2, जो स्टूडेंट डिसिप्लिन है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये स्टडी प्रोसेस क्या होगा आपका, जैसे कि आज का जो हमारा जो स्टडी प्रोसेस है, वो स्टडी प्रोसेस ये है कि हम जो इधर आज जो बेहतर तौर पर डिस्कशन करेंगे, जो ज्यादा डिस्कशन बेस्ड है। अगर जो हमारे स्टडी प्रोसेस ये कि हमें सिर्फ जो है स्टूडेंट्स को जो है वीडियो दिखानी है और उसके बाद जो उनसे जो है कोई क्विज लेना है, तो वो एक स्टडी प्रोसेस हो सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के स्टडी प्रोसेस होंगे जो कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए स्टूडेंट्स को पहले ही क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपका नॉर्म है। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन सेशन हो रहा है तो ड्रेस कोड क्या होगा। मैंने ये देखा है क्योंकि मैं खुद भी जो है अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही जो है कैजुअल ड्रेसेस के अंदर जो है वो जो है लाइव वीडियो पर जो है सामने आ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है इससे पहले कि जो है, मैंने देखा कि कुछ स्कूल्स ने इतना सख्त कर दिया कि वो कह रहे हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर जो आप ऑनलाइन सेशंस लें। तो मेरे ख्याल से हम इतना दूर भी नहीं जाना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कोई ड्रेस कोड देना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिसेंट ड्रेस कोड हो जिसके जिस फॉर्मेट पर आप और हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जो है ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती है, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट के अंदर क्लासेस हो रही है, टीचिंग जो है हमारी जो है अब मोबाइल टूल्स के जरिए हो रही है या फिर जो है लैपटॉप के जरिए हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, तो बहुत सारे लोग इसको जो है समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझ लेते हैं कि जो है ये स्टूडेंट्स को लगता है कि जो टीवी इन्वायरमेंट है और वो इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना शुरू करते हैं और फिर जो उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्शंस को भी जो है एड्रेस करें कि किस किस्म की डिस्ट्रैक्शंस हमें नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो नॉर्म तो यही है कि तो यही है कि जो आप स्टूडेंट्स को बोलें कि वो किसी ऐसे प्लेस पे अपने रूम में जाए, अपने घर में जाए, जगह पर जाएं जहाँ पे जाए उनसे जाए बात ना हो सके, किसी और कोई और उनको जो डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं जिनको आपने बिफोर हैंड, या अगर आप जो साथ साथ क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो साथ साथ जो कंडक्ट करें तो आपको साथ साथ भी पता चल रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आपको स्टूडेंट्स के साथ मिल रही हैं, या क्या क्या स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, तो आप वो साथ साथ भी एड्रेस कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है आप उन रूल्स को साथ साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर रूल्स आप लोग साथ साथ बनाएंगे तो स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि आपने जो है उनको अपने साथ जो है इस प्रोसेस के अंदर, जब आप रूल्स और जो है रेगुलेशन जो है डिजाइन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर आपने जो अपने स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया है। और जब आप उनसे जो है उनसे एडवाइसेस लेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब खुद रूल्स बनाएंगे तो वो उनके लिए भी आसान होगा इम्प्लीमेंट करना, अपने लिए वो उसको अप्लाई करना, वो बेहतर तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो डिजाइन करने के प्रोसेस में भी आपके साथ जो है रहे हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास, वो वही पार्ट है कि जो किस तरीके से जो है रेज योर हैंड जो वर्चुअल क्लासरूम में, क्योंकि जो हर कोई अगर एक साथ बोलेगा, अभी भी अगर आप 5 लोग जो एक साथ अपनी ऑडियो ऑन कर दें और बात करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स उनको समझ नहीं आएगा, इनफैक्ट मुझे भी समझ नहीं आएगा कि कौन क्या पूछ रहा है। तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि हमें उन्हें बताना होगा किस तरीके से जो है वो अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम में, क्वेश्चन आंसर्स कैसे हो सकते हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट किस तरीके से किया जा सकता है विदाउट बीइंग इंटरप्टेड, विदाउट किसी को इंटरप्ट किया आप किस तरीके से जो है बेहतर जो है इंटरप्शन कर सकते हैं। अगर आप जो ये जो है मुझसे जो है चैट पर जो है आपस में भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। साथ साथ जो है मुझे जो है नसरीन साहिबा का मैसेज कह रही है, I agree with the rules like keeping cameras on as it gives the teacher get to know the facial expression and when the class is being stretched। ठीक है, अगर आपके पास कम स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि कैमरास ऑन कर लें। बिल्कुल हमारे टीचर्स ने जो है ऐसा भी जो है रूल रखा है कि जब वो अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो आप अपनी वीडियो भी ऑन करें, ऑडियो भी ऑन करें और साथ साथ अटेंडेंस लें। तो अटेंडेंस के दौरान भी आप ये कर सकते हैं, टीचिंग के दौरान भी कर सकते हैं, ताकि आपको फेशियल एक्सप्रेशन समझ आ रहे हो या आपको समझ आ रहा हो कि स्टूडेंट जो है नोट डाउन भी कर रहा है आपका लेक्चर या नहीं नोट डाउन कर रहा है। तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कल्टीवेट स्टूडेंट्स ओनरशिप। ये पॉइंट जो है थोड़ा सा जो है हमारे पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेबल है, और वो रिलेटेबल पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स ओनरशिप जो है इज अ क्रिटिकल फीचर ऑफ द ऑनलाइन क्लासरूम मैनेजमेंट। ऑनलाइन क्लासरूम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और वो है स्टूडेंट्स की ओनरशिप। स्टूडेंट क्लासरूम जो वर्चुअल क्लासरूम है वो टीचर सेंटर्ड अब नहीं रहा है। अगर हम जो है अथॉरिटेटिव टीचर भी थे और अपनी क्लास में जो है हमने जो है काफी हद तक टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ भी था, तो अब जो है हम जो है वर्चुअल क्लासरूम में टीचर सेंटर्ड नहीं रहे। ये क्लासरूम या लर्निंग जो हमारी है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है। तो अब हमें स्टूडेंट को जो है प्रेजेंट करने होंगे मुख्तलिफ जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे वो लर्न कर सकें। अब वो वीडियो फॉर्मेट्स में भी हो सकता है, वो आप असाइनमेंट फॉर्मेट्स में भी दे सकते हैं, वो आप पहले से किसी प्रिंटेड मटेरियल की फॉर्मेट में भी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, बुक की फॉर्मेट भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए।
जो रिस्पॉन्सिबल हैं डायरेक्टली स्टूडेंट की लर्निंग के लिए वो स्टूडेंट्स खुद हैं। उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और हमें ये सिखाना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को ओनरशिप ले सकते हैं, किस तरीके से वो खुद ओनरशिप ले सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। उनसे ये बात की जा सकती है कि किस तरीके से वो जो है लर्न करना चाहते हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस के जो है क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, वो क्या लर्निंग जो है क्या क्या किस तरीके से जो है उनके गोल्स हैं कि जो है वो ऑनलाइन क्लासेस से क्या कुछ सीखना चाहते हैं। और फिर उसी, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया होगा, तो डेफिनेटली वो जो है क्या करेंगे, ओनरशिप लेना सीखेंगे। इसमें आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि पेरेंट्स भी साथ साथ जो है इन्वॉल्व हो जाए और जो है वो आपकी हेल्प करें स्टूडेंट्स को ओनरशिप लेने में, इंडिपेंडेंट होने में। अच्छा, फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स को जो है आप जो है ओनरशिप दे दें जब, तो स्टूडेंट्स को ओनरशिप में देने का फायदा ये होगा कि जब आप शिफ्ट कर देंगे ओनरशिप टीचर से लेकर स्टूडेंट तक, तो उनके पास क्या होगा, उनको जो हमें एक मार्जिन देना होगा कि वो फेल भी हो सकते हैं। हर स्टूडेंट जो है वो बेहतर ओनरशिप नहीं कंडक्ट कर सकता है, तो हमें साथ साथ ये मार्जिन भी देना होगा। हो सकता है कि वो एक सर्टेन डेडलाइन के ऊपर असाइनमेंट सबमिट ना करा सके, हो सकता है वो सर्टेन डेडलाइन के ऊपर कोई क्विज जो है सही तौर पर हल ना कर सके या उसके लर्निंग आउटकम्स जो है अचीव ना हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना होगा कि फिर आप जो है स्टेप इन करें और जो है जजमेंट किए बगैर स्टूडेंट को जो है बताएं कि कहाँ कहाँ वो जो है अपनी ओनरशिप लेने में लैकिंग कर रहा है, क्या क्या जो वो प्रॉब्लम्स थी, और उनको एड्रेस करते हुए उसको बताएं कि किस तरीके से अब वो जो है कैचअप कर सकता है अपने जो है स्टूडेंट्स के अपनी ओनरशिप को मजीद बेहतर करने के लिए, ताकि उसके लर्निंग आउटकम्स जो है वो क्या हो सके, ऑब्टेन हो सकें। साथ साथ मैं कुछ चैट्स भी इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगा। जय, कुछ लोग बता रहे हैं, एक सवाल हमारे पास आया था नसीम का, हाउ टू टेक ऑनलाइन इनपुट फ्रॉम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सेशन। चैट के जरिए अगर आप लेना चाहें तो बेहतर है चैट के जरिए, लेकिन अगर छोटी क्लासेस हैं जो चैट के जरिए बेहतर तौर पर नहीं लर्निंग ऑनलाइन इनपुट नहीं दे सकती अपना, तो फिर डेफिनेटली आपको ऑडियो का सहारा लेना पड़ेगा या वीडियो के सहारा लेना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है बेहतर प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे पास बहुत सारे लोग जो है बता रहे हैं कि जो है काफी सारे जो है प्लेटफॉर्म्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम अपनी पिछली वर्कशॉप्स के अंदर जो है वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई इतनी ज्यादा जो है हमारे लिए नई नहीं है ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन आ रही हैं। जैम बोर्ड बता रहे हैं लोग, क्विजेस बता रहे हैं, क्विजेस का जो है जो लास्ट सेशन मेरा हुआ था उसमें हमने बहुत जबरदस्त बताया था। एडमोडो जो है बहुत जबरदस्त है, गूगल क्लासरूम है, तो मुख्तलिफ किस्म की है, गूगल मीट है, हैंगआउट्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अभी कल जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस रिसर्च से मुझे एक और जो टूल मिला, और वो था menti.com, menti MENTI menti.com। वो भी बड़ा जबरदस्त टूल था, उसमें जो है आप जो है लाइव स्टूडेंट्स की जो है सजेशंस ले सकते हैं, तो वो बड़ा जबरदस्त है। अगर मुझे टाइम मिला अभी के सेशन में तो मैं वो भी आप लोगों को जो है स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके का वो सॉफ्टवेयर है। मुनीरा अपनी सजेशन दे रही है कि आप उनको ईमेल के थ्रू बताएं कि वो अपना काम मुकम्मल करें। बिल्कुल आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप 1-on-1 कॉल कर सकते हैं, तो वो जो है हमारे पास हो सकते हैं। ताहिर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर यू आर रेफरिंग योर ओल्ड वेबिनार्स, आर दीस अवेलेबल ऑनलाइन? सम आर अवेलेबल ऑन आवर फेसबुक पेज, और जो है कुछ जो है अभी एडिटिंग प्रोसेस में, इंशाल्लाह वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप फेसबुक पेज हमारा लाइक कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं यूट्यूब पर भी या कहीं पर भी, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जब पोल, जी बिल्कुल, ये जो बड़ा अच्छा फायजा ने कहा कि पोल जो है वो जो है बड़ा जबरदस्त ऑडियंस इनपुट के लिए पोल वेयर हो गया, या अभी जैसे देखिए मैंने जो है आप लोगों से पोल कंडक्ट कराया है स्टूडेंट्स की इनपुट लेने के लिए, पोल भी कंडक्ट करा सकते हैं आप जूम में, तो जूम के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। तो स्टूडेंट्स की ओनरशिप बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए। नंबर जो 4th हमारे पास है, एस्टैब्लिश अ रूटीन। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जो बहुत सारे टीचर्स का ये फॉर्मेट देखा कि वो जो है संडे को भी क्लास ले रहे हैं, वो किसी दिन जो है सुबह 8 बजे क्लास ले रहे हैं, वो किसी दिन जो है दोपहर में 3 बजे क्लास ले रहे हैं, कभी वो रात में 8 बजे क्लास ले रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है काफी अनकंफर्टेबल होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिबल नहीं होता, बाद दफा पेरेंट्स के लिए भी फिजिबल नहीं होता कि वो किसी भी टाइम पर जाए आपकी क्लासरूम जाए क्लास लेना कंडक्ट कर दें, क्योंकि सब अपने अपने घर में, तो बहुत सारे टीचर्स ने ये अज्यूम कर लिया है कि किसी भी वक्त कोई भी क्लास वो कंडक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ऑनलाइन सेशन। तो हमें चाहिए कि हम अपनी क्लासेस के लिए, अपने होमवर्क के लिए भी, और अपने क्लासेस असाइनमेंट्स के लिए भी, अपने ऑनलाइन इंटरेक्शन के लिए भी कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल या रूटीन को फॉलो करें। मे बी आपका वो स्कूल टाइम हो सकता है, मे बी वो आपका कोई और फिजिबल टाइम हो सकता है जिसमें आप आपको बेहतर लगे।
वो टाइम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स फील मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट व्हेन द प्रोसेस इज वेल एस्टैब्लिश्ड एंड द प्रोसीजर्स आर प्रेडिक्टेबल। अगर आप रोजाना अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे, किसी भी वक्त आ जाएंगे, कोई सी भी चीज कभी भी स्टार्ट कर देंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा उस नए मेथड को अडॉप्ट करना, क्योंकि ऑनलाइन इटसेल्फ जो अडॉप्ट करना मुश्किल है, उसके साथ साथ फिर आप जो है ये बड़ा मुश्किल कर देंगे। तो मेरे हिसाब से जो है जो ये टाइम टेबलिंग है, आपकी स्केड्यूलिंग है पूरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुषा भी ये कह रही है, वो एग्री करती हैं कि जो है द मैनेजमेंट एंड स्केड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है वी हैव ऑनलाइन टाइम टेबल फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए जो आपके पास ऑनलाइन टाइम टेबल है, काइंडली उसी टाइम टेबल को आप जो है स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दें। मे बी इसमें आपके साथ मसला हो सकता है कि आपने कोई टाइम टेबल रखा हुआ है, जैसे लेट से कि आपने जो 6 बजे शाम के जो रोजाना वीक में 2 दिन या 3 दिन असाइनमेंट्स को जो अपलोड करना है, लेकिन वो असाइनमेंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी की इशू की जैसे या नेटवर्क कनेक्टिविटी के जैसे इशू नहीं हो रहा है, तो वो कोई मसला नहीं है। आप वाया SMS या जो किसी और टूल के जरिए आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि जो इस वक्त ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी का इशू सॉल्व होगा, मैं इसको जो 6 बजे के बजाय जो 8 बजे अपलोड कर दूंगी या कर दूंगा। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप जो है रूटीन को स्टैब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ चीजें जो है कर सकते हैं। नंबर 2 जो हमारे पास पॉइंट था वो था फॉलो द नॉर्म्स एंड द लेसन स्ट्रक्चर दैट यू एस्टैब्लिश एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। आपके लिए जरूरी है कि वही नॉर्म्स और लेसन स्ट्रक्चर जो कि आपने स्टार्टिंग में अपने क्लास के जो बिगिनिंग ऑफ द कोर्स में रखे, उसी को पूरा सेशन में जो फॉलो करें। ये ना हो कि जो आज आपने मेरी सुनी तो आप जाकर जो नए रूल और नए टाइम टेबलिंग शेड्यूलिंग करना शुरू कर दें, फिर आप अगले हफ्ते किसी और वेबिनार को अटेंड करें, वहां पे कोई नई बात सीखे, वहां पर अप्लाई कर दें। हाँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स को आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन एक रूटीन आप जो है काइंडली जो है वो खुद ही अपनी फिजिबिलिटी और स्टूडेंट की फिजिबिलिटी के हिसाब से बना लें, डिजाइन कर लें और उस पर स्टिक अप रहने की कोशिश करें। It's good to have a routine for both the beginning and the end of the online session. Like for example, आप जो अटेंडेंस के लिए जो है आप ये कर सकते हैं कि आप जो स्टार्टिंग में, अगर आपकी रूटीन है कि स्टार्टिंग में अटेंडेंस लेने के बजाय आप एंड में अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस लेने के लिए आप हो सकता है पोल लॉन्च कर दें, मे बी अटेंडेंस लेने के लिए आप कोई लॉन्च कर दें। तो मुख्तलिफ चीजें जो है आप अपने क्लासरूम के नॉर्मेलिटी के लिए जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर स्टिक रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टडी को अगर आपने जो है रूटीन, अगर स्टडी जो है रूटीन वाइज हम कर रहे होंगे, कोई टाइम टेबल फॉलो हो रहा होगा, कोई स्केड्यूलिंग फॉलो हो रही होगी, तो ये स्टडीज को मोर इफेक्टिव बना देगी रादर देन कि हम किसी भी विदाउट एनी रूटीन जो है हम जो फॉलो कर रहे हो। तो ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी बर्डनाइज हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी, और हमारे अपने लिए भी बहुत फिजिबल नहीं होता, क्योंकि बाज दफा जब हम विदाउट रूटीन कोई इवेंट प्लान करते हैं या जो कोई मीटिंग प्लान करते हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे अवेलेबल नहीं होते, उनके बहुत सारे इशूज हमें पता चलना शुरू हो जाते हैं कि इस टाइम हमारी लाइट गई हुई। तो अगर हम बिफोर हैंड कोई रूटीन डिस्कस कर लेंगे, तो जब बिफोर हैंड जब हम कोई रूटीन डिस्कस कर लेंगे, जो रूटीन सेट कर लेंगे, तो वो जो है हम सबके लिए फिजिबल होगा। मुनज़्ज़ा गुल हमें कह रही है ऑल्सो कीप प्लान बी इफ अ रूटीन प्लान मे गेट डिस्टर्ब ड्यू टू अनअवॉइडेबल। ये बिल्कुल मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया और मैंने बोला कि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाता है, अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप स्टूडेंट्स को किसी और तरीके से इन्फॉर्म करें कि आपका क्यों क्लास कंडक्ट नहीं हो पा रही है, क्यों असाइनमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा, और उसके बाद आप वो बताएं बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब सेशन थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, काफी लोग भी कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जरा मैं अपनी एक्टिविटी पर आ जाऊं, जो एक्टिविटी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी थोड़ी देर पहले। तो मैं उस एक्टिविटी के ऊपर आ रहा हूँ। एक्टिविटी हमारे पास आपकी स्क्रीन पर अब नजर आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आपको अब काइंडली कोई अपनी ऑडियो के जरिए बता सकता है कि इस वक्त स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, गुड है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये एक्टिविटी है वो ये कि आप सबके पास ये वर्ड नजर आ रहा है आप सबको, एजुकेशन, जो कि डिफरेंट लेटर्स से मिलकर फॉर्म हुआ है। आपके पास 5 मिनट्स है, ठीक है, आप सबको नजर आ रहा होगा, एजुकेशन नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। आप सबके पास 5 मिनट्स हैं, और आप अपने चैट बॉक्स के ऊपर इन लेटर्स की मदद से, रिपीटेशन हो सकती है इन लेटर्स की, कोई भी लेटर्स आप यूज कर सकते हैं। इन लेटर्स की मदद से आपने डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करने, लेकिन शर्त ये है कि वर्ड्स जो है वो फोर लेटर वर्ड्स हों। आपने जो वर्ड्स फॉर्म करने वो 4 लेटर वर्ड्स हों। तो आप सारे के सारे जितने पॉसिबल आप लिख सकते हैं, 3 मिनट बल्कि हम करते हैं 4 मिनट, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप वो सारे के सारे लेटर्स लिखना शुरू करें। 4 लेटर्स के वर्ड्स आपने बनाने विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज लेटर्स दैट आर showing on your screen।
और रिपीटेशन हो सकती है। ओके, हमारे पास काफी लोग आना शुरू हो गए। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्टली साइमल्टेनियसली शेयर ना करें, बहुत सारे एक साथ पहले आप बना लें कुछ लफ्ज और फिर जो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 4 वर्ड्स की शर्त है। बहुत सारे जो है मैं देख रहा हूँ कि पहले से उन्होंने मेरे ख्याल से मेरा रूल नहीं सुना था और उन्होंने डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिए थे, तो काफी तो पहले ही आ गए। टोन, कॉशन देखें आप, 4 वर्ड नहीं है। क्यूट, एक्शन, केन, एज, ड्रग, कैटल, अरब, डीन, एज, क्यूट, डक्ट, टूल, आइकॉन, अनियन, नहीं अनियन तो 5 वर्ड्स हो गए। नोट, ईच, नोट, टैक, नेश, ये तो काफी वर्ड्स हो गए। नसरीन जो सेंड करी वो तो काफी जो वर्ड्स हो गए। जैसे नेशन में 4 वर्ड नहीं है, एजुकेट जो 4 वर्ड्स नहीं है, क्वेश्चन 4 वर्ड्स नहीं है, डक्ट हाँ 4 वर्ड्स है, डिक्टेट 4 वर्ड्स नहीं है। 4 वर्ड्स की शर्ट मैंने लगाई हुई है इस वक्त। क्वाइली, नेल, डेट, नीट, डेट, तो हमारे पास आ रहे हैं। जो रिपीट हो गए वो रिपीट ना करें, जो न्यू वर्ड्स आपने बना रहे वो आप बनाएं। 4 लेटर्स का आपने जो वर्ड बनाना है। सॉरी, हाँ वो मैंने जो थोड़ा सा गलत बोल दिया था, किसी ने मुझे जो करेक्ट किया। ठीक है, अमतुल के जो है बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए। डोर, क्रैप, एटम, टाइम, आइकन, नोट, एक्सेट्रा बहुत सारे आ गए। इमेज, एग्जिट, एज, डाइस, कार्ड, क्यूट, टार्ट, टीयर, टेर, आइडल, आइडियल, इंक, ऑन टू। ठीक है, काफी सारे वर्ड्स जो हमारे पास जो आना शुरू हो गए हैं। काफी सारे लोग जो डिफरेंट वर्ड्स जो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आसिया अशफाक ने भी काफी सारे। अच्छा, जिन जिन लोगों ने अब लिखना शुरू किए हुए तो सेंड नहीं किए वो सारे सेंड कर दें। अब हम इसको स्टॉप करेंगे। इन टू, टोन, कोड, काफी सारे जो एक्नी, नीट, सैंड, जो काफी सारे जो इलान। ठीक है, काफी लोग जो अनडू, सेंड, बहुत सारे जो हमारे पास जो एक्टिविटीज आ रही है। अच्छा, ये एक्टिविटी जो मैंने प्लान की थी वो एक्टिविटी इसलिए प्लान करी थी कि आप लोगों की डोर, बहुत सारे लोगों के आभार है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये एक्टिविटी जो मैंने प्लान की थी वो एक्टिविटी इसलिए प्लान की थी ताकि जो है मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो हमारे पास जो फोकस ऑन एंगेजमेंट का जो टॉपिक था, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को जो है प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स फोकस कर सकें हमारे ऑनलाइन सेशन पे। तो हमारे लिए हमें चाहिए कि फिर हम कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जिसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन फौरन से स्टार्ट हो जाए। तो हो सकता है कि आप कोई टॉपिक स्टार्ट करें, लेट सपोज आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक आपने स्टार्ट करते ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। मे बी आपने कोई कुछ पिक्चर्स दिखाना शुरू करी और स्टूडेंट से बोला कि वो क्रिएटिव होकर जो है बताना शुरू करें कि उन पिक्चर्स के बारे में उन्हें क्या समझ आ रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म की तरह की एक्टिविटीज आप ऑनलाइन सेशन में प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि फोकस ऑन एंगेजमेंट करेंगे, स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है, क्योंकि आप जैसे स्टार्टिंग में अगर स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को जो है ग्रैब कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है थ्रू आउट द सेशन जो है कोशिश करेंगे कि वो एंगेज रह सकें। हम एस्टैब्लिश रूटीन पर बात कर चुके थे। जो हमारा जो इसके बाद का पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा प्रेज योर स्टूडेंट। हमें अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रेज करना आना चाहिए। हम जो अब ऑनलाइन कैसे प्रेज करें? जब हम जो है स्टूडेंट्स को क्लास में प्रेज करते थे तो प्रेज क्लास में प्रेज करने का तरीका क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के तरीके होते हैं। मे बी हम जो उनको कोई अगर कोई छोटे लेवल पे क्लासरूम है तो हम स्टार्स और जिस तरीके की कोई चीज जो है स्टूडेंट्स को जो है गिफ्ट दे देते हैं, टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को जो है प्रेज करते हैं। लेकिन जब हम इमोजीज वगैरह के जरिए, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो है जब वर्चुअल क्लासरूम में करेंगे तो आप हमारे पास जो है प्रेजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा जरूरी प्रेजिंग। अच्छा, जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे और वो टीचर्स हमें कह रहे थे कि सायरा, शाजिया, मैं 2 मिनट कुछ बोलूंगा, उसके बाद प्लीज अगर आप अपना कोई इनपुट देना चाहें तो वो दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि जो टीचर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी और वो कह रही थी कि हम जो है खुद भी ऑनलाइन टीचिंग जो है कंडक्ट करा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं टीचर्स की। तो उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि वो अपने टीचिंग स्टाफ को भी प्रेज करें, क्योंकि टीचर्स में भी इस वक्त मोरल काफी डाउन है। अगर हम एक दूसरे को भी अप्रिशिएट करेंगे एज अ टीचर भी, तो ये बहुत अप्रिशिएटिव होगा स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, क्योंकि वो भी मोरल में हाई होंगी तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी प्रेज करेंगे। तो प्रेजिंग हर जगह पे बहुत जरूरी होती है, टीचर्स को भी प्रेज करना बहुत जरूरी होती है। और फिर अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टूडेंट्स को प्रेज करना शुरू करते हैं। और क्योंकि अब हमने जो है स्टूडेंट्स को प्रेज करना है तो अब हम क्लासरूम में मुख्तलिफ किस्म से क्लैप्स करवा देते हैं, हम स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करा देते हैं। तो अब हमारे पास जो है बहुत सारे आउटपुट आना शुरू हो गए पार्टिसिपेंट की जानिब से।
जो पार्टिसिपेंट्स हमें आउटपुट दे रहे हैं कि क्या क्या जो है वो करते रहें, कि किस तरीके से प्रेजिंग होनी चाहिए। तो प्रेजिंग के लिए वो बोल रही है कि बिटमोजीज, बिल्कुल बिटमोजीज या इमोजीज जो आप उनको सेंड करना शुरू करें तो वो भी अप्रिशिएट होंगे। ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है हम उनको वर्चुअल सर्टिफिकेट दे सकते हैं पार्टिसिपेशन के, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कॉम्प्लीमेंट स्टिकर्स हो गए, तो ये बिल्कुल ठीक है। एवरी टीचर एज वेल गॉट वर्चुअल सर्टिफिकेशन भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो है हमें जो है क्या चाहिए कि जो है हम जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें। मे बी हम जो है किसी सेशन में जो है उस बच्चे को बुलाकर जो है गिव द स्माइल, स्माइल बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो है आप मुस्कुराकर भी उनको देख लें तो बच्चे पार्टिसिपेट जो है उनका मोरल जो है हाई हो जाता है। ताहिर कह रहे हैं कि जो है 5 मिनट का उनको ब्रेक दे दें। ये ब्रेक देने का प्रेस से क्या ताल्लुक है? ताहिर अगर आप जो है ऑडियो पर आना चाहें तो आप आ जाइएगा। इससे पहले शाजिया कुछ कह रही थी, अगर शाजिया अपना इनपुट कोई देना चाह रही है तो प्लीज जो है वो आप आ जाएं ऑडियो पर और जो है अपना इनपुट दे दें। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जैसे अब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनके लिए ये इमोजीज, स्माइल्स, पढ़ाती हैं आप? जी जी, ओ लेवल, बिल्कुल 10th और 11th क्लास, तो वो लोग जो है इमोजीज और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इनफैक्ट उनको ये 5 मिनट की ब्रेक और स्माइल जो है वो बहुत चाइल्डिश लगती है। वो उल्टा टीचर पे स्माइल कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रही ये हैं। क्या मजाक हो रहा है? हाँ, तो तो फिर आप इसका आई वुड बी ग्रेटफुल तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या रखें? मेरे साथ कुछ शेयर करें। अच्छा, जो बड़े बच्चे यहाँ पर जिन बड़े बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो जरा अपना इनपुट शेयर करें हमें कि वो क्या करते हैं। शाजिया बता रही है कि जब वो ये सब स्ट्रेटजीज अपनी क्लास में प्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स को रखती हैं तो स्टूडेंट्स बजाय इसके कि टीचर के एफर्ट को अप्रिशिएट करें, टीचर्स के ऊपर जो है वो एक तरीके से जोक बन जाता है कि टीचर कर क्या रही हैं। ठीक है, कोई आना चाहता है क्या? अगर कोई आना चाहता है, अपना कोई इनपुट देना चाहता है तो ऑडियो जो है अपने अनम्यूट कर ले और जरा बताएं हमें कि क्या जो है वो, या चैट के जरिए अगर वो नहीं जो है कंफर्टेबल अगर Can I May I share? share? वालेकुम अस्सलाम, कौन है? अपना नेम बता दी प्लीज। जी, मुनीरा सोजर बात कर रही हूँ मैं बीएसएस से। मैं ये कह रही हूँ कि हमने 2 सेशंस लिए। हमने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में, मुनीरा सोजर, मैं ग्रेड 8 को पढ़ाती हूँ। ठीक है। और हमने जो है वर्चुअल सर्टिफिकेट की मैंने आपसे बात की, तो हमने जब बच्चों को दिए तो मतलब इतना 8 क्लास के बच्चे, ओ लेवल्स में तो खैर नहीं खुश होते हैं, वो इस तरह कहते हैं भाई ये क्या है, ये तो मजाक हो रहा होता है। लेकिन क्लास 8 के बच्चे इतना खुश थे वो वर्चुअल सर्टिफिकेट से, आप यकीन करें कि मतलब उन, और हमने 2 हर सब्जेक्ट में अलग से दिया। तो ये है कि अप्रिसिएशन मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। बिल्कुल हाँ, मेरे ख्याल है सारे के सारे टीचर्स जिस वक्त मौजूद हैं वो इससे तो अग्री करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रेज करना, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा फाइजा अंदर कुछ कहना Okay, can I share my point? व्हाट्स योर नेम? Munazzar, yeah, Munazzar. ठीक है मुनज़्ज़र जी, बोलिए। Okay, I'm also dealing with. I've taught in secondary, and currently I'm dealing with teacher. I'm a teacher trainer. So as far as praise is concerned, I feel that for higher classes, your praise should be very genuine. It shouldn't be just a sweeping statement. Oh wow and good. So for higher student, it has to be genuine and something which is very personalized for students. Only then it makes a difference. So whether it's some assignment, whether it's an attitude, so you know according to the child you give the feedback. ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके जी अलावा मैं कुछ ऐड करूं May I इसमें? share हेलो mine? हेलो 2 मिनट, इससे पहले जो है हमारे पास जो फाइजा अनवर और बरीरा जो है काफी देर से हैंड रेज की हुई थी। काइंडली आप लोग जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो हैंड रेज कर लें। फाइजा अपना आपको अनम्यूट कर लें और प्लीज फाइजा जो है बोलना शुरू कर दें। Ji, thank you, sir. This is Faiza Anwar. I want to share that with secondary students or O-level students, yes, we cannot simply say wow, and not only for appreciating, for praising them, for making them attentive and engaging in the class, we need to share our uh, praises towards them. Like if they are participating, we need to show all the class participants that they are attending and they are participating. Like I did in my class, in my Zoom class, that I used Jamboard for brainstorming and for solving flowchart for the secondary O-level students. And while I was doing, those who are participating with me via Zoom or by entering the Jamboard with the help of PIN code, I am
giving them sticky notes that wow, you have participated this or you have done this, right? Plus, I have played one Kahoot game with them, and when the students were participating, I showed them that who has taken the first position, second position. They were playing, and that is not really a play, a game. That was related to some questions, review questions of the previous classes. Okay, I'm getting So it. on the basis of that, the score was given to the participant, and those who have scored first, second, third position are shared on WhatsApp and other means ठीक है. to that they can show to their family members, their parents, that they have scored this position in today's class. ठीक है. That's it. Thank you so much, Faiza, for your input. तनवीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे. उससे पहले तनवीर साहब से May I share? जी बरीरा साहिबा जय काफी देर से हैंड रेज की हुई थी. जी आप अपना शेयर करें. Ji, Assalamu alaikum everyone. Okay, first of all, I just want to tell you that some of the participants are saying that giving them break for let's say 5 or 10 minutes or emojis, these things don't work for the adults. And I teach, I also teach adults, I also teach university students. मेरा ख्याल ये है कि ये वर्चुअल क्लासरूम में 5 मिनट्स ब्रेक और 10 मिनट्स ब्रेक वैसे भी वर्क नहीं करेगा. ये एक्चुअल क्लास में Exactly. आप ब्रेक दे सकते हैं. This won't work. Yeah. आप बोलिए. So I also teach adults, university students. So when we teach them physically, what I do with them, again these break thing or emoji cons or clapping karwa di, these things don't work with the adults. So adults के लिए फिर थोड़ा hard work करना होता है teachers को उनको praise करने के लिए. What I do with my students, I used to give them pens or let's say I used to give them novels as well in order to praise them. क्योंकि अगर आप novel दे रहे हो किसी student को, आप कोई अच्छी सी book दे रहे हो, तो इससे भी जो है उनकी मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होती है. तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको डबल परफॉर्म करके दिखाएंगे कि हमें भी बुक मिलेगी टीचर के हाथों से. सो दीज थिंग्स रियली वर्क विद द एडल्ट्स. नाउ व्हाट वी कैन डू इन आवर ई क्लासेस और ई लर्निंग, वी कैन गिव देम ई सर्टिफिकेट सिंपली. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट. और कौन हमारे पास डिस्कस करना चाहता है, प्लीज जो है वो अपना. जी मैं चाह रहा था, तनवीर बात कर रहा हूँ. जी अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ डिफरेंस फील किया है. मैंने स्कूल लेवल से लेकर और कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह पे आप जो भी रिवॉर्ड या जो भी इस तरह का प्रेज देते हैं तो उसका वेटेज क्या है ना, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस फील होता है हमें जब हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टीच करते हैं. उनके यहाँ पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है या ग्रेडिंग ब्रेकअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रादर देन स्कूल में 100% आप डिपेंड कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन पे. उसमें क्लास पार्टिसिपेशन है, असाइनमेंट्स है, ऑल दैट. तो उसमें आपको कुछ छोटी सी भी चीज़ है, लेट सपोज कोई अच्छी ये ठीक है, मैम बरीरा और मुनज़्ज़ा ने जो बातें कही बिल्कुल ये इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि उसमें कोई फिजिकल या कोई ऐसा एडवांटेज हो ना, क्योंकि पब्लिक अब बीइंग अ टीचर अगर आप देख लें, आपको अगर स्टाफ रूम में या किसी भी प्रोग्राम में टीचर्स के बुलाकर आपके लिए क्लैपिंग करवा ली जाए तो आप दिल में सोचते हैं कि इसका मैं क्या करूंगा. ठीक है ना, आपको कहीं वो फायदा सच नहीं दे रही होती. तो स्टूडेंट्स जो अपकमिंग जो हमारी मिलेनियल जनरेशन है, जो हमारी वाई जनरेशन है, वो हमसे ज़्यादा क्लेवर है. ठीक है, तो दे अंडरस्टैंड. ठीक है, वो अगर रिस्पेक्ट की वजह से कुछ कह नहीं रहे तो ये उनका बड़ापन है, हालांकि वो छोटे हैं. तो असल चीज़ ये कि थोड़ा सा हम अगर ग्रेडिंग को, अब फिर बात यही पे आती है कि टीचर की अथॉरिटी कितनी है, जो हमारी पार्टिसिपेशन, जो इंटेलिजेंस हमारे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरफ से होती है वो छोटे लेवल पर नहीं होते. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पता है कि भाई ये टीचर जो सामने खड़ा है ये माई बाप है. ठीक है, इसके पास अथॉरिटीज़ हैं, इसी ने हमारा रिजल्ट बनाना है. और फिर इसी को अगर लेकर हम देखते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट की जितनी हमारे पास अथॉरिटी है उसमें कोई इस तरह की अगर इंडल्जेंस या कोई अच्छी पार्टिसिपेशन आती है स्टूडेंट की तरफ से, तो हम उसको एक ना सिर्फ ये इंश्योर करें कि आपको बेटा ये इतने जो इस एक्टिविटी के मार्क्स हैं या आपके टोटल वेटेज में काउंट होंगे, ना सिर्फ ये बल्कि सिर्फ प्रैक्टिकली आपको लेकर भी चलना है, मैनेजमेंट की सपोर्ट भी इसमें होनी चाहिए. तो आई थिंक दैट विल वर्क एंड इट विल आल्सो इंप्रूव द डिसिप्लिन ऑफ द क्लासरूम. तो ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर. थैंक यू सो मच फॉर कुमार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. This is Kumar Fahd. I am from Head Start School. I am a preschool teacher, but what I see around me, I feel like appreciation is very important for O-level students or encouragement. अगर ये तो it works everywhere.
और आई थिंक बहुत अच्छा वर्क करेगा उनके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। अच्छा, अभी इससे पहले जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी और किसी ने हमें बताया था कि जय मैं नेम सॉरी क्योंकि काफी सारे मैंने इनपुट्स लिए तो मैं नेम भूल गया। किसी ने हमें मशवरा दिया था कि जय आप जय बुक्स के जरिए या नॉवेल्स के जरिए बच्चों को भेज दें। एक तो वर्चुअल क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है विदाउट द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। आप अपनी बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम खुद भी जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम अमाउंट प्राइवेट स्कूल्स में जो है अर्न नहीं कर रहे होते। अगर आप फिर भी इतने जय आप जय चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को बुक या नॉवेल्स वगैरह जय डिस्ट्रीब्यूट कर दें या भेज दें तो वेल एंड गुड है। मगर मेरा ख्याल ये है कि इसमें फिर आपको जो है स्कूल मैनेजमेंट को भी या जो भी आपकी कॉलेज मैनेजमेंट है या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है उसको भी आपने जो है क्या करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा। और इनकी इन्वॉल्वमेंट की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को कोई गिफ्ट या कोई चीज भिजवाना चाहते हैं तो फिर वो आप भिजवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो पहले जब अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में तो क्या था कि आपने कोई पेन खरीदा हुआ है अपने पास और आपने उसी वक्त दे दिया किसी स्टूडेंट को, बट नाउ ये सिचुएशन नहीं है। अब आपको जो है आप सिचुएशन ये है कि आपको जो है अगर भेजना भी है किसी को कोई चीज तो फिर आपको कुरियर करनी पड़ेगी। तो ये जो है फिर एक जो है ज्यादा जो है कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इस टाइम क्योंकि स्कूल जो है काफी ज्यादा जो है काफी ज्यादा स्कूल्स है इस वक्त, जाहिर सी बात है क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कंडीशन में बहुत सारी मैनेजमेंट पे मुझे नहीं लगता कि राजी होंगी कि वो इस तरीके के किसी स्टेप को जो है इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा जाती ख्याल है कि फिलहाल इन वर्चुअल क्लासरूम ये आइडिया तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा कि हम कोई चीज इनको भेज दें अनटिल एंड अनलेस आप अपने एंड से ये स्टेप खुद ना ले लें। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, बट जय ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें मेरे रिस्पॉन्स पर भी जय कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग मनी टू प्रेज आई फील इज नॉट अ वर्थवाइल आइडिया। बिल्कुल ठीक बात है कि जय पैसों को जय अपने अपने पैसों को बहुत ज्यादा जय इन्वॉल्व कर लेना प्रेज के लिए मेरे ख्याल से ये इतना ज्यादा हेल्दी भी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो मेरे ख्याल से कि जो एप्रिसिएशन के बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं। और क्योंकि हमारे सारे के सारे टीचर्स ने मुख्तलिफ इनपुट्स दिए तो जो भी आपकी सिचुएशन में आपके कॉन्टेक्स्ट में बेहतर वर्क करता है आप उसको जो है बेहतर तौर पर जो क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्कूल लेवल के लिए या प्री स्कूल लेवल के लिए तो मेरा सबसे बेहतर तरीका यही होता है, मैंने बहुत से स्कूल्स को फेसबुक पेज पर भी देखा है और जो है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी देखा है कि वो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए उनकी वीडियोस जो वो वीडियोस बना रहे होते हैं या जो वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसको अपलोड करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स भी खुश हो और उनके पेरेंट्स भी उनको इनकरेज करें स्टूडेंट्स को। तो इनकरेज करने के स्टूडेंट्स को, अप्रिशिएट करने के स्टूडेंट्स को बहुत सारे तरीके हैं और जो आप जो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है मेरी बात से अग्री कर रहे हैं कि जो है वो जो है प्रैक्टिकल नहीं है मनी को जो है इन्वेस्ट करना इतना ज्यादा। तो बिल्कुल ठीक है, अगर जो आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी मनी जो है पैसों को तो फिर डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप जो है ई सर्टिफिकेट्स के ऊपर, बैजेस के ऊपर, स्टिकर्स के ऊपर और मुख्तलिफ एप्रिसिएशन जो है मेथड्स के ऊपर आप जाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। ओके, ये मेरा लास्ट पॉइंट है इस पूरे जो स्ट्रेटेजीज का कि ये स्ट्रेटेजी हमारे पास लास्ट स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारे पास पॉइंट है यूज वेरियस मीन्स टू कॉन्टेक्ट पार्टिसिपेंट्स। अगर आपके पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं आपके पास जो है तो आपको जो है वेरियस वे ऑफ जो कॉन्टैक्ट रखना होगा। कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ टूल्स होने चाहिए आपके पास। आप मे बी जो है ईमेल के जरिए भी उनसे कांटेक्ट करें, मे बी आप जो है किसी एडमोडो या गूगल क्लासरूम के जरिए भी कांटेक्ट करें, मे बी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ हो, मे बी आपका फेसबुक ग्रुप बना हुआ हो, या हो सकता है कि अगर आपने स्टूडेंट को किसी स्मॉल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो आप 1-on-1 कॉल कर लें या ग्रुप वाइज कॉल कर लें, ग्रुप वाइज जो है सेशन रख लें, वीडियो सेशन रख लें, या जो है मुख्तलिफ किस्म से जो है आप क्या करें स्टूडेंट्स के जो है कॉन्टैक्ट करें। कम्युनिकेट करने के मुख्तलिफ जराए जो आप स्टूडेंट से स्टैब्लिश करें। अगर आप मुख्तलिफ जराए नहीं करेंगे या एक ही वे करेंगे तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर वे जो आपने ऑप्ट किया हुआ है वो फिजिबल ना हो स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो मुख्तलिफ टूल्स को, कम्युनिकेशन टूल्स को यूज करते हुए स्टूडेंट से कम्युनिकेशन रख सकते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आपकी क्लास अगर शॉर्ट है या आपकी क्लास के ग्रुप, अगर आपने किसी ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो कोई ग्रुप जो है आपने जो प्रोग्राम रखा हुआ है, कोई ग्रुप टास्क रखा हुआ है और उस टास्क में आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको जो है डायरेक्टली कॉल करके उनके लीडर से या उनके ग्रुप इंचार्ज से जो डिस्कस कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है आप जो है कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन टूल्स को यूज करते हुए स्टूडेंट से कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, I want to share one more thing, may I? जी बिल्कुल।
Okay, see, if we talk about such things, so see, it varies from level to level. Okay, बिल्कुल now बिल्कुल I teach two different levels. I teach university students as well as access kids, और उनका age group होता है 16 to 18. ठीक है, तो अब उनके साथ e-certificates ये totally work करता है. What I do, I always tell them, I will choose student of the week आफ्टर दिस वीक. ठीक है, तो वो बहुत थ्रू बहुत आउट ठीक वीक है स्टूडेंट्स का एक पेस क्रिएट रहता है, एक ईगरनेस होती है कि हमें थ्रू आउट द वीक हमें सर्टिफिकेट मिलेगा. तो इस तरह आप ये चीज उन लेवल के स्टूडेंट्स का बिल्कुल कर सकते हो एंड इट टोटली वर्क्स. बट बिल्कुल सी बिल्कुल आई ये कांट मुझे से बहुत एनीथिंग अच्छी दैट इट लगी विल वर्क फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू, क्योंकि उनका तो बस कंसर्न ही सिर्फ अटेंडेंस होता है और सेमेस्टर में मार्क्स चाहिए उनको बस. वैसे ही तो लाइक सी दीज थिंग्स लाइक वर्क डिफरेंटली बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम एज टू एज. बिल्कुल ऐसा ही है. और मैंने जब अपना जो ये जो पॉइंट स्टार्ट किया था उस पर भी मैंने बोला कि विद इन योर ओन कॉन्टेक्स्ट, तो आपके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब मुख्तलिफ इदारों में पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन से हमारी एसोसिएशन है, तो कहीं पर कुछ काम करेगा और कहीं पे कुछ काम करेगा. तो जो बेहतरीन टीचर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम, उनके लिए क्या बेहतर काम कर रहे हैं वो जो है उसको जो है ऑप्ट करते हैं. तो हमें ये डिसीजन पावर तो ये हमारे पास है, ये अथॉरिटी तो हमारे पास है कि हम अपने जितने भी आइडियाज अभी हमें यहाँ पर मिल रही है, जितने आइडियाज हमें पहले भी मिल चुके हैं, उनमें से कौन सा हमारे कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हमारे लिए बेहतर है. तो हर किसी के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है वो डिफरेंट टीचर्स के लिए वर्क करेगी. बिल्कुल ठीक है. ये बहुत अच्छा जो आपने स्टूडेंट ऑफ द वीक का रीडर है जो हमें जो है आइडिया दिया, ये मुझे बहुत जबरदस्त लगा, स्पेशली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स ऑफ द वीक जो है बहुत जबरदस्त है अप्रिशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स को. बहुत जबरदस्त ये जो है एक सजेशन है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर क्लास में जो है आपके पास अगर फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप उसके ऊपर स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप विद हिज पिक्चर या विद देयर पर्टिकुलर वीडियो आप उसको अपलोड कर दें, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होंगे, उनके पेरेंट्स भी इंकरेज होंगे इस तरीके की एक्टिविटीज. Yeah, there are different ideas. We can paste their picture on the certificate, but see, it needs a little harder work. इस पे थोड़ा टीचर को थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है एक एक सर्टिफिकेट को बनाने में. सो देयर आर डिफरेंट टूल्स. अगर आप लेवल आपकी छोटी है, लाइक 5 to 6 आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप स्टूडेंट्स की पिक्चर भी लगा सकते हो, उसको कलरफुल बना सकते हो. अगर आपकी लेवल उससे बड़ी है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को थोड़ा वो प्रोफेशनल लुक भी देना होता है सर्टिफिकेट्स को. सो लाइक दीज थिंग्स रियली वर्क फॉर दिस लेवल ऑफ students, but Thank you. not for university students. ठीक है. थैंक यू सो मच. मेरे ख्याल से जो है बाकी सब भी कह रहे हैं कि हमने इनफ इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है वेरियस पार्टिसिपेंट्स के ऊपर. तो अब हम जो है कुछ 3-4 हमारे पास जो है और वर्चुअल क्लासरूम मैनेजमेंट की टिप्स हैं, हम उन पे भी डिस्कस करते हैं. तो जो हमारे पास जो है डिस्कशन है, कुछ लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रेज करते हैं फेसबुक पेज के जरिए. तो बहुत जबरदस्त आइडिया, मुझे भी बहुत जबरदस्त लगा है ये आइडिया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ और टिप्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको नजर आना शुरू हो गई होंगी. तो जो पहली स्टेप है हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम को इफेक्टिव करने के लिए, वो यही है कि इनकरेज इनिशिएटिव. आप इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम पिछली बात जो कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को प्रेज कर सकते हैं. तो अब प्रेजिंग स्टूडेंट से रिलेटेड ही हमारे पास जो सेकंड जो टिप है, ये टिप है कि इनिशिएटिव्स को जो है हम इनकरेज करें. स्टूडेंट्स को हम जो है स्टूडेंट्स को जो है हम अप्रिशिएट करें अगर वो किसी पर्टिकुलर काइंडली म्यूट योरसेल्फ. मैं म्यूट कर रहा हूँ तमाम लोगों को. जब आप लोगों ने बोलना हो तो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा और फिर अब जो है हम जो आपको लेंगे. और फिलहाल तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने जो प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि टाइम हमारा एंड पर है. फिर जो लोग डिस्कशन करना चाहते हैं वो मजीद हमारे साथ जो स्टे कर सकते हैं. तो इनकरेज इनिशिएटिव के ऊपर मैं था और मैं ये बता रहा था कि अगर स्टूडेंट जो है अपने स्टूडेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेकर आता है क्लासरूम में, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए या लर्निंग मेथोडोलॉजी को मजीद बेहतर करने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम स्टूडेंट के ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो किसी भी सर्टेन टॉपिक को अपनी तरफ से मजीद रिसर्च करें, अपनी तरफ से मजीद उसके ऊपर काम करें और उसकी प्रेजेंटेशन वो हमें भी दें और अपने स्टूडेंट्स, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनको भी सिखाएं, ताकि इस इनिशिएटिव से बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा और ये प्रेजिंग भी बढ़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है असाइन ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स.
हम जो है ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स, मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो तो इससे जो है बिल्कुल जो है आगाह होंगे कि ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स पर काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम जो है स्टूडेंट्स को जो है फ्री हैंड प्रोवाइड कर देते हैं। वो अपनी मर्जी से टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, वो अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने इनपुट्स देकर उस प्रोजेक्ट को जो है उसके ऊपर काम करते हैं, अपनी मर्जी से ग्रुप डिसाइड करते हैं। और ये सारा का सारा ओपन एंडेड सिस्टम होता है जिसमें सारा का सारा काम जो स्टूडेंट करता है, और जो है इसमें टीचर सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करता है और जो है गाइड करता है, और सारा का सारा जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो स्टूडेंट्स के पास आता है। तो हमें चाहिए कि वर्चुअल क्लासरूम को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो है घर में स्टूडेंट्स को अपने उनके कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए ऐसे टास्क प्रोवाइड करें जो कि ओपन एंडेड हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जो है कोई भी जो है टास्क जो है हम जो है स्टूडेंट्स को जो सिखा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फोर्स सिखा रहे हैं, या जो है हम स्टूडेंट्स को जो है न्यूटन के लॉज पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी घर में रहते हुए एक्टिविटी स्टूडेंट कर सकता है, वो ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को असाइन करें और उनको बोलें कि वो डिमॉन्स्ट्रेट अपनी नॉलेज को करें जो उन्होंने हमसे क्लासरूम में सीखी है, जो वीडियो लेसन्स में, या जो उन्होंने वाया बुक या मटेरियल जो है उन्होंने सीखी है। तो हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करें ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं थर्ड पॉइंट पर जाऊं, मेरे पास जो एलाइड टीचर्स कह रही हैं, सर कैन यू अलाउ मी टू रीनेम माय सेल्फ, पार्टिसिपेंट नेम नोमा खान। नोमा, देयर इज नो नीड टू रीनेम योर सेल्फ नाउ। ठीक है कि आप हैं, अब आपने हमें बता दिया कि आप अटेंड कर रही थी। ओके, एड्रेस बैड बिहेवियर क्विकली, ये भी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी टीचर्स जो अगर हमारे साथ हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस भी प्लीज शेयर कीजिएगा अभी थोड़ी देर में। स्टूडेंट्स का जो अभी जो जूम क्लासेस हो रही है उसमें बहुत ज्यादा जो है एक मसला ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स के जो है बैड बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा है, एड्रेस नहीं हम कर पा रहे, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी नाम से कोई भी बच्चा प्रोफाइल बना लेता है, वो अटेंड करता है हमारे सेशन और फिर जो है डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करता है, और जो है कोई बहुत ज्यादा जो है खराब सी जो है बात कर देता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास का जो है एनवायरनमेंट भी खराब होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो अपने स्टूडेंट्स को जो है बिल्कुल भी हम इसमें ना घबराएं, और अपने जो भी हमारे जो बैड बिहेवियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन दे रहे हैं हम जो है उनको फौरन ही एड्रेस कर दें कि क्या बैड बिहेवियर है, और हम इस पे जीरो टॉलरेंस शो करें, ताकि जो है स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो सकें, ये समझ सकें कि जो है क्या जो है क्लासरूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जो ये चौथा पॉइंट है वो पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जितना क्लास, ये छोटे लेवल्स के लिए भी और बड़े लेवल्स के लिए भी, विद इन देयर हम जो है अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए गिविफाई पर्सनल लर्निंग प्लान्स। जो हमारे लेसन प्लान्स हैं, हमें चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है इंकरेज करें कि वो अपने लेसन प्लान्स को जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितना पॉसिबल है गेमिफाई कर लें। गेमिफाई का मतलब ये कि गेम्स के जरिए जो है वो लर्निंग बेहतर कर सकें। अभी हमारे साथ कोई पार्टिसिपेंट था जो हमें शेयर कर रही थी कि वो मुख्तलिफ क्लासरूम लेसन्स के क्विज़ेस को वाया गेम फॉर्म में जो है वो जो है गेम फॉर्म में जो है वो बच्चों को सिखा रही थी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है पर्सनल लर्निंग को जो है मोटिवेट करने के लिए हम उनको जो है गेमिफिकेशन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम अपने लेक्चर्स को इतना गेमिफाई कर लें कि जो है अच्छा जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, फिर जो हम अपने सेशन के Q&A पार्ट पर जाएंगे, और अगर कोई जो है अपनी ऑडियो शेयर करना चाहेगा तो वो भी शेयर कर लेगा। फिलहाल जो है मैं जो है कुछ जो है चैट्स के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पर जो है एक सवाल आया हुआ है और वो है कैन यू प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर सर्टिफिकेट। कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई नोट करना चाहे तो वो नोट कर ले, वैसे हमारे फेसबुक पेज पर अवेलेबल भी है 0313245018 0313245018 ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पर आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ताहिर नसीम कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज मेंशन ऑन व्हिच पेज दिस सेशन इज गोइंग लाइव टू व्यू इट अगेन। ये सेशन जिस इवेंट पर आपने इंटरेस्टेड मार्क किया होगा या गोइंग मार्क किया होगा, या जहां से आपने जो लिंक मिला होगा आपको मेरे इस इवेंट का, उस इवेंट के ऊपर ये इस वक्त लाइव है ये प्रोग्राम, और जो है वहां से वहीं पर ये लाइव रहेगा फिलहाल, और जो है उसके बाद जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है अपलोड हो जाएगा। अच्छा, बरीरा जो है बड़ा अच्छा एक सजेशन दे रही है, एक लिंक उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, कह रही है आई मेक ई सर्टिफिकेट फॉर दिस एक्सेस किड्स। वो बता रही है कि एक्सेस किड्स के लिए, जो वो एक्सेस किड्स को पढ़ाती हैं उनके लिए वो इस जगह से जो है सर्टिफिकेट्स बनाती हैं, क्रिएट करती हैं। बिल्कुल, आप जो है फाइजा अनवर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं कि जो है गेमिफाइंग जो है वो जो है स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, ये जो बरीरा है और जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारे पार्टिसिपेंट्स, तनवीर साहब हैं, फाइजा साहब हैं, शाजिया यूसुफ थी, और भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन की थी,
काइंडली वो जो है अपने अपने नेम्स जो है मुझे जो है व्हाट्सएप कर दें, मैं उनसे जो है कुछ कांटेक्ट करना चाहूंगा बाद में। तो जो भी लोग हैं वो जो है प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, जिन्होंने मुझसे पार्टिसिपेट किया, बरीरा हो गई है, फायजा है और बहुत सारे लोग हैं, प्लीज मुझसे जो है कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट करने का रीजन सिर्फ यही है कि जय मैं भी आप लोगों को एक तो प्रेज करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आप लोगों की आज बहुत ज्यादा बेहतर इनपुट पर, जिससे सेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। सेकंड जय एक और चीज है जो कि मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूंगा जब आप लोग जब मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास जो है सेशन की बातें हो गई। अच्छा, कुछ हमारे जो है अपकमिंग इवेंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला जो हमारा इवेंट अब आ रहा है वो इवेंट हमारे पास है, ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, सस्टेनिंग क्वालिटी आउटकम्स इन रिमोट टीचिंग। अभी आज की जो हमारी डिस्कशन थी उस डिस्कशन में भी हमने कई दफा ये बात करी कि किस तरीके से जो है हम क्वालिटी आउटकम्स को जो है सस्टेन करें रिमोट टीचिंग में। अब क्योंकि रिमोट टीचिंग में सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि हम रिमोट टीचिंग पे चले गए, अब उसके बाद किस तरीके से हम क्वालिटी आउटकम्स को सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अगर हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं रिमोट टीचिंग में। ये हमारा टॉपिक है, ये एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है, ये वेबिनार नहीं है। नंबर 1 ये ट्रेनिंग वर्कशॉप है उन टीचर्स के लिए जो कि अपने रिमोट टीचिंग को मजीद बेहतर करना चाहती हैं। ये प्लान की गई है सैटरडे को 18 जुलाई 14 to 16 ड्यूरेशन इसका टाइम का। तो ये 18 जुलाई को जो है प्लान की गई है। ये हमारी फर्स्ट वर्कशॉप है जो कि इस मंथ होने जा रही है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप है टीचिंग द 21st सेंचुरी लर्नर। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्कशॉप है जिसको हम हर मंथ तकरीबन जो है कर रहे होते हैं, जिसमें हम सिखा रहे होते हैं कि 21st सेंचुरी टीचिंग जो है किस तरीके से जो चैलेंजिंग है और किस तरीके से हम उसको आउटकम जो है किस तरीके से हम अपने जो है 21st सेंचुरी लर्निंग जो है अपनी क्लासरूम में जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये जो है हमारी जो प्लान की गई है थर्सडे 23 जुलाई 2020, टाइमिंग्स अगेन 2 to 4 PM है, 2 आवर्स की ये वर्कशॉप होगी। देन थर्ड वर्कशॉप हमारे पास है, ये भी ऑनलाइन वर्कशॉप है। वर्कशॉप का टॉपिक है द अल्टीमेट गाइड टू गेमिफाई पेपरलेस क्लासरूम। आप अपने पेपरलेस क्लासरूम को, जो कि आजकल हमारा वर्चुअल क्लासरूम है, उसको हम किस तरीके से गेमिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसकी गाइड्स हैं। ये भी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है। इसको जो हमने प्लान किया है मंडे 27 जुलाई फ्रॉम अगेन 2 PM to 4 PM। ये तीनों वर्कशॉप जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं और इनको जो है ये जो है आप इनको जो है ये हमारे इवेंट पेजेस के ऊपर भी, हमारे पेजेस के ऊपर भी इनकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इन सब के लिए जो है पार्टिसिपेशन जो है जरूरी, पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है कि आपको एक तो रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है कि आप जो है वहाँ पर लिंक मौजूद है, लिंक में आप जो है अपना नेम और जो भी जो डिटेल्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, ये फ्री वेबिनार्स नहीं है, तो इनकी कॉस्ट आपको जो है 500 पड़ेगी। इसके साथ साथ 500 के साथ जो है आपको जो है ना सिर्फ जो है इसमें जो है ई सर्टिफिकेट जो है आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा, नंबर 2 आपको जो है ई रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट मेथड जो है आपको जो है जो जैसे जैसे जो रजिस्टर्ड कर लेंगे, हम जो है आज के बाद से जो है पहले जो भी हमारी वर्कशॉप है सस्टेनिंग क्वालिटी आउटकम, हम आज और कल से जो है अब उसके पेमेंट मेथड जो डिस्कस करना शुरू करेंगे। इजी पैसा के जरिए भी आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 3 इवेंट्स हमारे, तीनों की फीस जो है 500 है और जो है ई रिसोर्स मटेरियल जो है आपको जो है वाया नेट या जो है व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया जाएगा या वाया ईमेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट्स आपको जो है सर्टिफिकेट जो है आपको जो है आपके घरों तक कुरियर सर्विस के जरिए पहुंचा दिया जाएगा विद इन 1 वीक। ओके, अब जो हम जो अपने सेशन के एंड पर आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपने Q&A सेशन पर जाऊं, अगर कोई शख्स अपना इनपुट देना चाहता है तो काइंडली वो अपना आपको अनम्यूट कर ले, पहले हैंड रेज कर ले और फिर अनम्यूट कर अपना इनपुट दे दे। कोई अपना इनपुट देना चाहता है आप में से? जी 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 बिल्कुल। सलेमान, अच्छा सेशन था। द ओनली थिंग इज के यू नो एक लोगों को एक तो पॉइंट पे रहने की बात है, एंड एज अ होस्ट आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए। लाइक यू नो इवन इन चैट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत और डिस्कस हो रही होती हैं, एंड वी ओपन चैट के शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो, शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो। एक वो चीज़, एंड सेकंड चीज़ ये है कि जैसे जो आप अभी कह रहे थे ना वर्चुअल ट्रेनिंग की, आई वुड लाइक कि अगर आप कोई लिंक बता सके। बेसिकली यू नो जो मैंने अपने स्कूल में देखा टीचर्स को जो बेसिकली वो फेस कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, उनको इस चीज़ में बहुत मुश्किल हो रही है। कुछ वीडियोस बनाने के लिए, पावर पॉइंट को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई एक आध आप ऐसा सेशन भी रखें जिसमें आप टिप्स दें हाउ टू मेक लेसन्स, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू टीचर्स।
थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। और ये बिल्कुल लाइनअप में ये सेशन हमारा मौजूद है। सेशन का एग्जैक्टली नेम ये नहीं है, मगर जो है हमने ये सेशन जो है इसी मंथ के लिए प्लान कर रखा है, और इन सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फेसबुक पेज पर इंशाल्लाह अपलोड होती रहती हैं और अवेलेबल रहती हैं। तो जो भी लोग जो है इस तरीके के सेशन में भी जो है आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ जाए। सना शकील कह रही है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द अपकमिंग इवेंट्स। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए तो वो आप हमारे फेसबुक पेज पर आप चले जाएं, सारे के सारे इवेंट्स उसके ऊपर मौजूद हैं। आपको जो इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करना, आप उसमें इंटरेस्टेड मार्क करके जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अच्छा जी, फाइजा अनवर अपना इनपुट देना चाह रही हैं, तो प्लीज म्यूट कर। जी जी। Yes, sir. It was a wonderful session in the sense that we have reinforced many things. Those who are not applying will get the different links in the chat box as well. And that was a good, wonderful discussion session, I must say. But I want to suggest one thing, that you should categorize the teachers. Like majority of us are teachers here. So pre-primary, primary and secondary, O-level, these are, we have different mode of teaching strategies we are using, which are not mutual. So for pre-primary, primary, you can take another session, and for secondary and O-level and university, you can take another session. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। असल में होता है ये फायदा कि जो है जो ये इस तरह के फ्री सेशंस होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ऑडियंस आ जाए और जितना कुछ हम क्योंकि मैं जो अपने वेबिनार सेशंस में रखता हूँ उन सेशंस पे ज्यादातर हम डिस्कशन बेस्ड हम इसके ऊपर रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं टीच कर रहा हूँ और सामने वाला लर्न कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि हम आपस में सीख रहे होते हैं, और ये सेशन जो है हम ओपन रखते हैं सबके लिए, इसलिए ताकि सब अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने कॉन्टेक्ट शेयर कर आपस में एक दूसरे से जो है डिस्कस कर सकें। बिल्कुल ठीक आप ये कह रही हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए जो है बिल्कुल जो है हमें चाहिए, मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगा कि हम जो है इसको कैटेगराइज जरूर करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। उस्मा साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, तो उस्मा प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके जो कहना शुरू कर दें। जब तक जो है उस्मा अपने आप को अनम्यूट करी, उस वक्त तक जो है कुछ सवाल हमारे पास आ जाए। नोमा हमसे कह रही है कि विल यू शेयर एनी रिसोर्स मटेरियल ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का कोई रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये सेशन इटसेल्फ जो है फेसबुक पर अवेलेबल होगा लाइव में हमारे, तो वो जो है वहां से आपको मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान, ये हमारी थोड़ी सी देर ताखीर। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नेम जो है मोहम्मद खजर है, एंड प्लीज प्रोसीड। ओके, ये असल में हमने ताखीर से आपकी वर्कशॉप अटेंड की, यकीनन बहुत अच्छी रही होगी। हमें ये शाजिया की बात को सेकंड करना था। हमारा ताल्लुक सिटी स्कूल से है और हम ये चाहते हैं कि जैसे शाजिया ने कहा कि एक ही हम जो क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जो वर्चुअल क्लासेस ले रहे होते हैं, उसको मज़ीद कैसे कहना चाहिए और इंटरेस्टिंग बना सकें और बच्चों के लिए कि बच्चे एक ही तरह की बात को हमारी बार बार तो नहीं अच्छी तरीके से समझेंगे ना। तो हम चाहते हैं कि स्पेशली उर्दू टीचर्स के लिए, जो कि उन्होंने अभी भी कहा कि हम लोग इतने वो नहीं थे, टच में नहीं होते हैं कि हम जनाब के आईटी स्किल्स इतने नहीं होते हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3-4 महीनों में बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन फिर भी जो उर्दू के हवाले से हमें भी कुछ बताया जाए, कुछ ऐसा कि जो उर्दू टीचर्स भी बहुत सारे ओ लेवल्स के हैं, ए लेवल्स के हैं, तो वो किस तरीके से अपनी क्लासेस को मजीद बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है, बहुत अच्छी आपने जो अपनी इनपुट मुझे दी है। मैं इसको इसी वक्त नोट डाउन कर रहा हूँ आपके, कि उर्दू के लिए जो आपने जो बहुत अच्छी सजेशन दी है कि कोई उर्दू के लिए। सर मैं कुछ कहूँ? जी कौन है हमारे साथ? शाजिया। जी दोबारा आप कहिए। एक्चुअली जो अभी उस्मा ने भी बात की, मुझे भी मेनली जो है अपने स्कूल में बीइंग एन इंचार्ज ऑफ 6, 7, 8 एज वेल, मुझे भी सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हुई ना वो उर्दू के टीचर्स के साथ हुई। फिर हमारे स्कूल में मैट्रिक सेक्शन भी है, मैंने वहाँ देखा कि इवन 9, 10 के टीचर्स को क्योंकि बोर्ड का कोर्स पढ़ाना होता है, आप यकीन करें कि सबसे ज़्यादा इस पैंडेमिक में जो टीचर्स इफेक्ट हुए हैं और जो मॉरली बहुत डाउन हुए हैं ना, दे वर उर्दू एंड इस्लामिया टीचर्स। बिल्कुल। एंड very difficult, like to sometimes, not to everyone, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये काम करना, टेक्निकल चीजें उनको समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। आप ऐसा कुछ बनाएंगे तो डेफिनेटली आई वुड लाइक माय टीचर्स टू अटेंड दैट सेशन, एंड दे वुड विलिंग टू पे आल्सो, बट द थिंग इज कि उनको कुछ इजी टिप्स मिले कि वो अपने लेसन इंप्रूव कर सकें।
थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सक्यूज मी शाजिया, एक्सक्यूज मी खिजर, शाजिया ने कहा मोराल डाउन नहीं हुआ, हमारा तो मोराल बहुत हाई हुआ है इस दौरान में। यकीन कीजिए कि हम लोगों ने इतना सीखा है, स्पेशली अगर हम अपनी बात करें, हम हैरान होते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हम लोग उर्दू में प्रेजेंटेशन बनाना तो अलग बात है, बाकी सब चीजें नहीं, हम बहुत माशाल्लाह से इंटरेस्ट से ये काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि छोटा बच्चा कोई नया क्लास में आता है हमारे लिए। एक्चुअली ये मिक्स एक्सपीरियंस है। देखिए आपने सीखा, इसी तरह हमारे इसमें भी कुछ सीखा, लेकिन कुछ लोग जो है ना जो ये नहीं कर पाए, उनके लिए बात हो करें जो सकता है, एक हो दो सकता है कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारे Maybe, तो but you स्कूल know, की I तरफ से भी totally agree with you. I totally agree with you कि बहुत ज्यादातर टीचर्स का मोराल हाई हुआ है क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि दे हैव लर्न सो मच, जिसको कुछ भी नहीं आता था उसने उसने बहुत कुछ अचीव किया है, सो यू शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। तो आई थिंक मोराल हैज गॉन अप। मेरे ख्याल से तो I would add here कि where was the management, मतलब इसमें तो I think स्कूल मैनेजमेंट, ये बड़े बड़े नाम हैं सारे जो सिटी स्कूल और वगैरह के लिए, तो मैनेजमेंट ने इसमें कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, and where were मैनेजमेंट ने ही these किया, computer मैनेजमेंट ने किया है। computer teachers were there? मैनेजमेंट है जी सबने मिल के किया है, इसमें All right, हमारा that's great, इंटरेस्ट that's ज्यादा great, था जब भी हम लोग सीख that's सके। great, विदाउट that's मैनेजमेंट great, सपोर्ट that's तो great. आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते। मैनेजमेंट सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, और विदाउट मैनेजमेंट की जो जितने भी बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पर, जितने भी सिटी स्कूल हो गया, बीकन हाउस हो गया, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल हो गया, और भी बहुत सारे हेड स्टार्ट स्कूल है, इन टीचर्स को मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि पिछले कई सेशंस में इन स्कूल के एक तो टीचर्स इंडिविजुअली अटेंड कर रहे थे, बल्कि स्कूल के जो मैनेजमेंट्स है वो भी हमसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो भी जो इसको अटेंड करें, और वो अपने लेवल के ऊपर अपनी क्लास, अपने इन हाउस भी काफी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट की हेल्प के बगैर तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा खजर, हम अपनी मैनेजमेंट को बहुत great. अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने हर लम्हे स्पेशली उर्दू टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और वो इस बात पर खुश भी बहुत है कि टीचर्स विलिंगली काम कर रहे होते हैं, स्पेशली उर्दू टीचर्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच। अच्छा, जितने भी लोग इस वक्त मुझसे ऑडियो में कम्युनिकेट करते, पार्टिसिपेट करते, काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरा मुझे जय मैसेज करके जय एक तो हम उनको प्रेज करना चाहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं आज के सेशन को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड, हमारे पास कुछ आइडियाज भी हैं जो हम उनके साथ शेयर करना चाहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आप सब इसको प्लीज म्यूट रखें अपने माइक्स को, और जो लोग क्वेश्चंस करें, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो काफी देर से मेरे पास आ रहा था पीछे, और वो क्वेश्चन मिस हो गया है। कोई शख्स पूछ रहा था कि स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए सेशन, हाँ किसी मैं क्वेश्चन वो सर्च कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन क्या, और अगर कोई वो सेशन जो क्वेश्चन जिसने पूछा था, प्लीज वो क्वेश्चन दोबारा पूछ ले। अच्छा, ताहिर साहब का वो क्वेश्चन था। Can I reply to that question? I will read it first. I have the question. जी, Sir, if you allow. जी, please. Okay. The question is, can someone share any tips to start and end the class session in a better ways, and how to remain energetic and confident in the virtual classroom sessions, as these virtual sessions are new to all students as well as all teachers, right? If you allow me, can I reply? Can I share few starters and ending? Please go okay ahead. Okay, so sir, for starting activities, very first thing that we have to update ourselves. If we are computer teachers or we are not computer teachers, we have to learn every day. Very first thing, we have to search for new activities, because if we apply the same starter activity for every day in our every virtual classes, then a student will get bored, right? Very first thing. So change of strategies, change of tools, change of starter activities and ending activities and mid activities should be there. Very first thing. For starter activities, some brain teasers. Brain teasers are very good to start, and they are more effective to use in between also. For starter activities, you can share some animated videos, short animated videos. For example, some motivational videos, some character based videos, not it's not cartoon based videos, but short animated videos of 1.5 minutes, 2 minutes. In that way, you will not only engage the student, the attention towards your session, but plus you can take the attendance in that duration. So what I have seen, that many teachers
are taking the attendance and students are doing nothing. So for engaging them, in the beginning, you can share some animated videos, some story-based videos, and you can ask some questions. Some pool sessions can be there, and in the ending, some gamifying should be there to review your lesson. Thank you. थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं भी इसी पे जय, दोनों बहुत जबरदस्त आप लोगों ने सजेशंस दी अपनी अपनी. थैंक यू सो मच फॉर योर. सर बट इतनी सारी एक्टिविटीज में फिर सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना बिल्कुल होता मैं है, ये भी इसी क्योंकि कंसेप्ट मैनेजमेंट को वो नहीं बिल्कुल छोड़ेगी. बिल्कुल मैं Yes, sir. But in virtual classes, the main thing is to see in gaming fine you are reviewing the lesson, right? In a starter activity, you are taking the attendance. In between, you can carry on with your syllabus. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, जब ये सवाल, जब ये सारी की सारी सजेशन आ रही थी तो उस वक्त मेरे जहन में भी यही क्वेश्चन रेज हुआ था कि जय अब मुझे पता था कि बहुत सारे लोग फिर यही पूछेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज करने में फिर क्या होगा कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. नंबर वन कि हमारे जो ये सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं हमें इनको अलाइन करना आना चाहिए अपने लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव से. हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी एक्टिविटी किस वक्त करानी है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव, जो कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उससे मीट करें. नंबर वन. नंबर टू, हमारे पास जो है बात ये थी कि अब इतनी सारी एक्टिविटीज अगर हम कराएंगे तो क्या हम जो हमें लेसन डिलीवर करना है क्या वो हम उसको जो है अटेन कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे. तो मेरी सजेशन ये होगी कि स्टार्टिंग में बजाय इसके कि आप जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराएं, आप वीडियो शेयर कर दें. आप जो है क्लास से पहले, जैसे फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट होता था कि आप जो है क्लास से पहले ही स्टूडेंट्स को जो है जो कंटेंट होता है, जो सॉलिड कंटेंट है, जो टीचिंग सॉलिड कंटेंट है, वो या तो खुद आप वीडियो रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दें या यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं. आप उनमें से जो बेहतर, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी है आप वो पहले स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दें. अब जो सेशन होगा, क्योंकि आपने जो लर्निंग कंटेंट है वो सारा का सारा आपने स्टूडेंट्स को पहले डिलीवर कर दिया. अब जब आपका ऑनलाइन सेशन होगा, उस सेशन में आपने ये जज करना है कि स्टूडेंट्स ने कितना उस जो आपने वीडियोस प्रोवाइड की थी या जो आपने कंटेंट दिया था उसको कितना एब्जॉर्ब कर लिया, कितना सीख चुके हैं. तो उन एक्टिविटीज के जरिए आप स्टूडेंट्स को एक तो जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, और नंबर टू, जब आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये लर्निंग को बहुत बेहतर बनाता है. तो ये मेरी सजेशन है. नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है किसी के पास? और इसमें अगर हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे स्लीपिंग स्टूडेंट्स कितने हैं ना, जो मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वो बस कनेक्टेड हैं, नजर आ रहे हैं, तो अगर उनको हम हाईलाइट करें, उनको लाइक उनसे क्वेरीज करें, एक लाइक लेट्स सपोज एक स्ट्रेंथ हम क्लास की देख लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि इतने जो है वो 4 से 6 8 10 जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं. फिर हम उनकी एक लिस्ट बना लें, हर सेशन में 2-3 को उनमें से पकड़ लें कि भाई आप बताएं, आप इंटरेक्ट करें. बिल्कुल ऐसा ही. देन जो है वो इन द एंड ऑफ द सिलेबस हम देखेंगे कि हमारे पास शायद इंटरेक्टिव स्टूडेंट ज्यादा होंगे और थोड़ा सा मोरल भी क्लास का डिफरेंट होगा. तो दैट वाज अ सजेशन. थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस ग्रेट सेशन. सो मच. अच्छा, अगर आप में से अब कोई लोग जो है लीव करना चाहते हैं, देखें मैंने पहले भी कही थी ये बात जब हम सेशन में थे कि क्योंकि अब सेशन का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, पार्टिसिपेंट्स लीव करना शुरू कर देंगे. हमने स्टार्ट किया था आई थिंक 56-57 पार्टिसिपेंट्स है जूम पर. मुझे फेसबुक का तो अभी पता ही नहीं कि फेसबुक पर कितना लाइव चल रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 32 पार्टिसिपेंट्स मौजूद है. तो ऐसा होता है जब हम सेशन को बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हैं तो वो क्या होता है कि फिर जो उस पर से इंटरेस्ट लोगों का लीव करना शुरू हो जाता है. और ये क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है इतना ज्यादा, जो है वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो लीव कर सकते हैं. तो अभी भी अगर कोई चाहे तो वो उसको लीव कर सकता है. नंबर वन. नंबर टू, अगर अब किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वो क्वेश्चंस लेकर जय बताए कि वो क्या क्वेश्चंस हैं. तो अब जब कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें से किसी ने कमेंट किया है, फाइजा साहिबा ने कमेंट किया है कि माय टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन इज दैट शेयर प्री रीडिंग मटेरियल. नॉट जस्ट प्री रीडिंग मटेरियल, मे बी आप कोई वीडियो लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आप देते हैं उनको या कोई वीडियो प्रोवाइड कर दें, तो ये बिल्कुल ठीक है. ये आपका अच्छा टेक अवे आज के सेशन का. फिर जो है गुड पॉइंट, वन एक्टिविटीज शुड बी अलाइन. तो एक्टिविटीज को अलाइन करना तो बहुत जरूरी है. सवाल आया फरार सलाम की जानिब से, हाउ टू एंगेज शाय स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मैनी. मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आपके स्टूडेंट्स है वो शाय हैं और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर नहीं है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप उनको ऐसी एक्टिविटीज देना शुरू करें, लाइक फॉर एग्जांपल उनको ना डायरेक्टली आप इन्वॉल्व ना कराएं कि वो लाइव सेशन में डायरेक्टली आकर जाए इंटरेक्ट करना शुरू हो जाए. मे बी आप उनसे कोई पहले वीडियो प्रेजेंटेशन मांग लें कि जो उन्होंने लर्न किया है वो जो है वीडियो के जरिए जो कर सकें कम्युनिकेट. मे बी आप जो कोई, अगर वो ग्रुप डिस्कशन में भी बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं तो फिर आप कोई 1-on-1 सेशन जो उनके साथ रख लें. अगर कुछ, क्योंकि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो शाय होते हैं, पूरी क्लास में हर कोई शाय स्टूडेंट नहीं होता,
तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप जो अपने स्टूडेंट्स को जो है बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी ये हैबिट भी ब्रेक करें कि उनकी शाइनेस खत्म हो और वो इतने कॉन्फिडेंट जरूर हो कि वो जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें अपने जो है बाकी लोगों के सामने, जो अपने क्लास वाले उसके सामने भी रख सकें और आपके सामने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। अभी जैसे हमारे साथ भी हो रहा है, बिल्कुल जबरदस्त फायदा ने ये कहा कि शायद स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर लर्निंग आंसर्स इन चैट बॉक्स। बिल्कुल ठीक है, जैसे देखें अभी हर कोई हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑडियो के जरिए, तो बाकी जो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो वाया चैट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर कोई शाय है या इतना कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है कि वो बोल सके लोगों के सामने आकर, तो फिर ठीक है कि जो है वो क्या करे, वो जो है चैट बॉक्स के जरिए जो है कम्युनिकेट कर ले। मे बी जो है मैं जब पिछली सजेशन दे रहा था कंडक्टिंग रिमोट लर्निंग इफेक्टिवली, जब मैंने सेशन लिया था तो उसमें मैंने एक सजेशन दी थी अपने पार्टिसिपेंट्स को कि आप जो है एक जो है ईमेल कम्युनिकेशन का जरिया रख लें या व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन का जरिया रख लें, 1-on-1। आप साल के आखिर में हर स्टूडेंट को 1-on-1 एक मैसेज या मीटिंग अरेंज कर लें जब आपका एक सेमेस्टर एंड हो जाए, और उनसे 1-on-1 सेशन में जो है उनसे उनकी जो क्यूरीज हैं उनको जो है आप आंसर कर सकें, तो ये हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है मैं अपना नोमा कह रही है कि वो अपना लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर लेती हैं और फिर वो दोबारा स्टूडेंट्स को जो है भेज देती हैं ताकि वो जो है क्विज और जो है डिस्कशंस कर सकें बाद में भी। सायरा हसन का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन सबमिशन ऑफ देयर असाइनमेंट्स। आप स्टूडेंट्स अगर जो है असाइनमेंट्स में जो है अपना जो है सबमिशंस नहीं कर रहे हैं या वो जो है ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर छोटे लेवल है तो प्लीज आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लें। पेरेंट्स से पूछें कि क्यों जो है, क्या रीजन है कि स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा है, फिर जो है आप उस पर जो है इंडिविजुअली वर्क करना शुरू करें। क्योंकि सबमिशन ऑफ असाइनमेंट का मतलब यही है कि वो जो अगर वो सबमिट नहीं कर रहा असाइनमेंट, उसका मतलब यही है कि वो जो है इंटरेस्ट अपना लूज कर रहा है और उसके कोई ना कोई रीजंस होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि रीजंस क्या है, किन रीजंस की वजह से स्टूडेंट जो है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर रहा है और असाइनमेंट सबमिट नहीं करा रहा है। मे बी हो सकता है पावर इशू हो, मे बी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट इशू हो, वो इंटरेस्टेड ही ना रहे हमारी क्लासेस में, तो फिर हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिवली कुछ काम करना होगा। ठीक है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हैंड रेस हुए में काफी लोगों के। राबिया शफी कुछ कहना चाह रही है? अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो प्लीज कह दे। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत छोटे लेवल्स को बच्चों को पढ़ाती हूँ, 2 इयर्स के बच्चों को, और अगर मैं उनके साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहूँ तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो आप मुझे 2 मिनट, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप इतने छोटे बच्चों को पढ़ा क्यों रही हैं? आपका कोई डे केयर है या कोई स्कूल लेवल है जहाँ पर जाए ये इतने छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है? मैं प्राइमरी स्कूल फॉर द स्कूल्स। सॉरी, आपकी आवाज सही से नहीं आई, दोबारा आप रिपीट कर देंगी? मैं प्राइमरी टीचर्स हूँ अस्मा के अंदर। आई एम इन देयर 2 to 3 years एज। अच्छा, तो ये जो आप 2 साल की एज बता रही हैं, मेरा नहीं ख्याल अगर कोई और बताए कि क्या इतने छोटे बच्चों को स्कूल में बुला लिया जाता है, क्योंकि आमतौर पे जो मैंने देखा है नर्सरी क्लास को 3 तो कम से कम होती है या 2.5 एज होती है, और उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, वो कोई रिटर्न वर्क वगैरह नहीं करा रहे होते। बनेंगे मेरे स्कूल में 1.5 से ही बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं आने, and they started. Actually, Asma is a preschool. It's a school where kids are going before the kindergarten or before yeah, it's a preschool. Yeah. ठीक है, असल में इनके स्कूल का नाम मैंने सुना भी नहीं है और जो मुझे पता नहीं था कि ये प्री स्कूल है। मैं तभी पूछा था कि क्या कोई डे केयर है या कोई प्री स्कूल है। ठीक है, तो आप अगर आप तो आपका मसला क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने में मुश्किल हो रही है या कंडक्ट ही नहीं हो पा रही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर? जी, अभी अस्मास में तो इतने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली कुछ करना चाह रही हूँ कि फॉर माय ओन सेशन के मैं खुद स्टार्ट करूँ इन फ्यूचर। अगर दे कॉल अस फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, सो हाउ आई कैन कंडक्ट दैट? यू कैन गाइड। मेरे अपने भी कई जानने वाले जो स्कूल्स में क्लासेस ले रहे हैं, इतने छोटे स्टूडेंट्स की, बहुत छोटे नहीं है लेकिन स्कूल जो नर्सरी और इनके स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स जो है उनको इन्वॉल्व किया है स्टूडेंट के साथ, जो है मदर जो है वो साथ मौजूद होती हैं और वो जो है क्या करती है, फैसिलिटेट करती है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ताकि लर्निंग पॉसिबल हो। क्योंकि जो इतने छोटे बच्चे हैं उनको एक साथ बिठाकर लर्निंग कराना वो बहुत मुश्किल होगा। मेरी सजेशन ये होगी दूसरी कि जो है आप जो उनको जो है होम टास्क दे दें। लेट्स से आपने जो उनको कलमा याद कराना है, तो आप जो कोई होमवर्क असाइन कर दें कि बच्चों को कलमा याद करा दें और कलमा याद कराने के बाद उन बच्चों की वीडियो रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा दी जाए।
तो इस तरीके से आपको पता भी चलता जाएगा कि बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बच्चे लर्न भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है आपको आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होंगे जो साथ साथ वो भी आप अटेन कर सकेंगे। दूसरी आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज दे सकती हैं, फ्रूट एक्टिविटी दे सकती हैं कि कौन सी फ्रूट्स है, कलर एक्टिविटीज दे सकती हैं, तो मुख्तलिफ एक्टिविटी। मेरी कजन का बेटा है, वो लर्निंग ट्री में पढ़ रहा है, वो भी 1.5-2 साल का है। वहाँ से टीचर्स अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन अगर कोई लाइव सेशन करे तो उसके लिए क्या टिप्स होंगे? पेरेंट्स को जो है आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑनलाइन लाइव सेशन फॉर सच यंग स्टूडेंट्स। इतना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा जो है एक और हेरा का जो है रिप्लाई आया और वो बहुत अच्छी सजेशन दे रही है जो हमने सेशन के स्टार्ट में बोली थी कि जो है 15 मिनट सेशन इट्स इनफ। इससे ज्यादा आप जब बहुत ज्यादा लेंथी सेशन ना करें, कोशिश करें कि और छोटा कर लें। अगर आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं लेना चाह रहे हैं और आप लाइव सेशन पे जाना चाह रहे हैं, और दूसरी सजेशन ये कि प्लीज अगर जो है आप लाइव सेशन ले रहे हैं तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि वो आप अपना वीडियो ऑन रखें। अगर इस वक्त मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस और आपका इंटरेस्ट तो वैसे ही लूज हो जाएगा। तो इतने छोटे बच्चों के अगर आप सजेशन ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो अपनी वीडियो ऑन करें और एटलीस्ट उनको ऐसा फील कराएं कि आप उनको देख रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी है। बच्चों के साथ हमें आई कांटेक्ट ज्यादा रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो Sir Khurram, can I give my input on this? जी प्लीज। Sir, I'm Madhya Faraz from Foundation Public School from the elementary campus. Actually, I am also dealing with small kids like 3.5 onwards, but we have teachers who are a teacher of preschool, 2.5 to onwards, like wo pre-nursery teachers, and they are also giving recorded lesson as well as twice a week. They have live session as well. 15 minutes are more than enough for younger children, but it should be very interactive session. अगर आप प्री रिकॉर्डेड में ऑलरेडी लेसन दे चुके हैं तो लाइव में यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर इंटरैक्टिव सेशन। मोर इंटरेक्शन होगा तो बच्चे भी इन्वॉल्व रहेंगे। एंड एज मिस द टीचर हु इज फ्रॉम असमास, it is not possible, miss, to arrange this session like these kind of session individually. It is the team work. अगर आपके मैनेजमेंट चाहेगी तो ही आप स्टार्ट कर सकेंगे, बट प्री रिकॉर्डेड लेसन्स बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं। छोटे छोटे टास्क हो उसमें बच्चे वो करें और फिर वो आपको एज असाइनमेंट और जो भी जिस तरीके से भी स्कैन करके पीडीएफ के थ्रू वो आप लोगों को रिसीव हो, और फिर आप उन असाइनमेंट्स के बारे में जो आप लाइव सेशन कर रहे हैं ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, उसमें आप उसके बारे में बात करें और फिर उनको मोटिवेट करें। तो इस तरीके से बॉन्ड बनेगी, बच्चों को एक एसोसिएशन फील होगी कि वी आर स्टिल एसोसिएटेड फ्रॉम स्कूल और वी आर स्टिल एसोसिएटेड विद आवर टीचर्स। तो इतने छोटे बच्चों को इस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच मदिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम काफी इनफ डिस्कशन हो चुकी है। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन लेकर आ जाए, और एल्स फिर जो है हम वरना अपने सेशन को एंड करते हैं। मेरे जो आज के लर्निंग इंटेंशंस थे उनमें से तीसरा इंटेंशन जो था वो ये था कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें, और वो कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सेशन पे हम जो बातें कर रहे हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, एक दूसरे की हम हेल्प कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, उससे ये कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। मेरे पास एक सजेशन है कि जो हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी, जिसमें हम जो है आपस में एक दूसरे टीचर्स को जो है मोटिवेट करेंगे। तो इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल्स मैं अपने फेसबुक पेज पर जो है जरूर जल्दी शेयर करूंगा। तो मेरी सजेशन ये है, मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से ये कि जो लोग भी अभी मौजूद है प्लीज हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर गिविंग देयर इनपुट। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबने बहुत ज्यादा जो है अपना इनपुट दिया, और जो है हमने जो है एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और जितनी भी हमारी अपकमिंग वर्कशॉप्स हैं उनकी डिटेल आपको जो है हमारे फेसबुक पेज से इंशाल्लाह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई थिंक देयर आर नो मोर चैट क्वेश्चंस। तो हम जब अपने सेशन को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि आप सब जो भी अपनी अपनी तरफ से मेहनत करें अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए, और आप लोग के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के जो स्कूल के लिए वो बेहतर साबित हो। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कुछ क्वेश्चन करना है। मदीहा जो है हैंड रेज कर रही हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, या कोई इनपुट देना है आपने अपना। मदीहा है या राबिया शफी है? Sir, I am Madhya and I am already done. I just spoke. Thank you.
हैंड रेस असल में हुए हुए उस्मा साहिबा के और राबिया साहिबा के। अगर आप लोगों ने कोई इनपुट देना तो ठीक है दे दें, वरना जो है हम अपने सेशन को जो है एंड की जानिब लेके जाएंगे। I already done with it. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब मुख्तलिफ स्कूल से कराची के जो हमें ज्वाइन किया और अपने अपने बेहतर बड़े ज़बरदस्त इनपुट हमें दिए। इंशाल्लाह आप लोगों से आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। फ्री वेबिनार्स भी आगे हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। आप लोगों की जो सजेशंस थी मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम करेंगे। और आप सबसे जो भी कनेक्ट करना चाहता है वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, कनेक्ट कर ले, व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। और बहुत जल्द हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि हम सारे टीचर्स को, जो कि स्पेशली कराची गाइड्स हैं, कराची में रहते हैं, उन सबकी एक बहुत ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन जो है बेहतर हो जाए, जिससे जो है हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कभी मुलाकात होगी और मैं दुआ करता हूँ कि कोरोना की सिचुएशन भी खत्म हो, ताकि हम कोई ऐसा सेशन कर सकें जहाँ पर हम किसी ऑडिटोरियम में बैठे एक दूसरे से बातें करें और जो है वन ऑन वन मुलाकात हो, फेस टू फेस हो, ट्रेडिशनल मीटिंग हो हम सबकी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।